بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خواتین و حضرات. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس ٹوڈے. آج ہماری تقریباً 20 منٹ لیٹ سیشن شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں، ٹیکنیکل ریزنس. تو اس سلسلہ گفتگو میں السلام علیکم، کیسے اس سلسلہ گفتگو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، فہم اقبال کی نشست ہم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈسکشنز کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پڑھانے یا پڑھنے کا وہ نہیں ہوتا، ڈسکشنز ہوتی ہیں جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ سیکھنے کی. اور اس میں بنیادی طور پہ ہم تھیمیٹیکلی چل رہے ہیں، یعنی ڈفرینٹ تھیمز جو ہیں علامہ اقبال کے مختلف، آپ یوں کہہ لیں کنسیپچول تھیمز. کیا کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک کتاب شروع کی ہے اور وہ از اول تا آخر پڑھتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، کوئی ایسا کورس نہیں ہے. تھیمز لے رہے ہیں ہم، مختلف تھیمز. جیسے ہم نے جہاد سے متعلق ان کے افکار کا مطالعہ کیا، ہم نے تصوف سے متعلق ان کے کانسیپٹ کا مطالعہ کیا، ہم نے ملوکیت سے متعلق ان کے کانسیپٹ کا مطالعہ کیا. قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہم نے ایک نشستیں ہم نے کی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کو ایز دعوت کی اساس کے طور پہ وہ کیسے لیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید کے مختلف افکار کو اپنے اشعار میں کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں، یعنی اس کو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے محکمات کے طور پہ وہ کیسے کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے فلسفے پر بھی گفتگو کی کہ فلسفے سے متعلق ان کے ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام جو نظم ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فلسفے پہ تنقید کس طرح کی ہے. تو یہ مختلف تھیمز ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ میتھڈالوجی کیا ہے ہماری، کہ ہم مختلف تھیمز کو ڈسکس کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ فقر کے حوالے سے تھی، کہ فقر ایک ایسی ٹرم ہے جس کو علامہ اقبال نے بہت یوز کیا ہے. خاص تو شروع میں بھی کیا تھا اپنی ابتدا کی شاعری میں، لیکن بعد میں تو بہت کثرت کے ساتھ اس ٹرم کا استعمال کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جب ہمارا وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو آج اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ اس کانسیپٹ کو، فقر سے کیا مراد ہے. کچھ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے گزشتہ نشست میں کیا بات کی تھی فقر کے حوالے سے؟ کوئی یعنی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہوں؟ یا پلیز گو اہیڈ پلیز. توکل قناعت، بالکل ہم نے یہ بات کی تھی. کوئی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہوں فقر سے کیا مراد ہے؟ غربت، فقیری، ہاں کوئی بھی جو ذہن میں آ رہے ہیں آپ کے پاس. اللہ کے سوا کسی اور پہ دھیان نہ نظر کرنا، اللہ کے سوا کسی اور پہ نظر نہ کرنا، اس کا دھیان نہ کرنا، بے نیاز ہونا. زہد بھی آپ نے بالکل لاسٹ ٹائم توجہ دلائی تھی. تو ہم نے یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہم نے انفیکٹ ان ساری باتوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا گزشتہ نشست میں. آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو 3 طریقوں سے، 3 اس کی کیٹیگریز ہم ہوئی تھی. ایک وہ لغوی اعتبار سے، جس کا مطلب فقر کا مطلب وہی افلاس یا غربت یا فقیری، یہ لغوی اعتبار سے اس کا یہی مطلب ہے. اور دوسرا اس کا متصوفانہ اصطلاحی اعتبار سے، یعنی ایک لغوی اعتبار سے اور ایک اصطلاحی اعتبار سے. اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا جس کو کہتے ہیں عرف متکلم. یہ 3 کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی تھیں. یہ ذرا ذہنوں میں تازہ کر لیں آپ. لغوی اعتبار سے، دوسرا اصطلاحی اعتبار سے، اور تیسرا عرف متکلم. لغوی کا مطلب کیا ہے کہ لغت میں، لغت کہتے ہیں زبان کو نا، تو زبان میں عام لوگ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ جو عام لوگ بات چیت میں استعمال کرتے ہیں وہی چیز لغت میں ثبت ہو جاتی ہے، یعنی ڈکشنری میں لکھی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو لغوی کہتے ہیں، یعنی ڈکشنری میں بھی اس کا وہی مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ وہی افلاس، غربت، فقیری وغیرہ. تو یہ لغوی اعتبار سے اس کا یہ. دوسرا ہم نے دیکھا تھا اصطلاحی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغت سے اٹھ کے اب وہ لفظ ایک اصطلاح بن جاتا ہے، ایک ٹرم بن جاتا ہے، ایک ٹرمینالوجی بن جاتا ہے. اب وہ اسی کے ساتھ مثال کے طور پہ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ تو کیا مطلب ہے؟ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ دعا کی طرف آؤ، اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ دعا کی طرف آؤ، حالانکہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دعا. تو لغوی طور پہ کیا ہے؟ دعا. اصطلاحی طور پہ کیا ہے؟ نماز. یہ سمجھ گئے نا آپ لغت میں اور اصطلاح میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک لفظ لغت سے اوپر اٹھ کے اصطلاح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا میں نے عرض کیا عرف متکلم. عرف متکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ یا جو آتھر وہ لفظ استعمال کر رہا ہے وہ اب لغت سے اوپر اٹھ کے اور اصطلاح سے بھی اوپر اٹھ کے
اس کو ایک خاص معنوں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں اس متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جو کلام کر رہا ہوتا ہے، متکلم کا عرف بن جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، سب سے مشہور مثال خودی کی ہے۔ اب دیکھیں خودی جو ہے وہ آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ایگو بھی آپ کو ملے گا اور بہت سارے میننگ مل جائیں گے، لیکن خودی کو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جن معنوں میں استعمال کیا ہے وہ خاص علامہ صاحب کے ساتھ مختص ہیں، تو اس کو کہتے ہیں متکلم کا عرف۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہم نے گزشتہ نشست میں اس کی کچھ مثالیں دی تھیں کہ ایک لفظ کو لغت اور اصطلاح سے اوپر اٹھا کے بات کرنے والا متکلم اس کو ایک خاص معنی دے دیتا ہے، ایک خاص لفظ میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ تینوں کیٹیگریز آپ کے سامنے سمجھ آ گئی نا، لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، اور متکلم کے عرف کے اعتبار سے یا عرف متکلم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا لغوی اعتبار سے کیا ہے، غربت، افلاس، فقیری، فقیر جیسے باہر ایک فقیر آیا کہتے ہیں نا امام، تو وہی اس کی فقیری کو کیا کہیں گے، فقر، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے کہ ہمارے یہاں متصوفین علماء نے اس کو اس لغت سے اٹھا کر ایک خاص معنی دے دیا۔ وہ کیا ہے کہ اب یعنی یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہوتا ہے نا وہ جب پیدا ہوتا ہے، لفظ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک مفہوم کے ساتھ پیدا ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ ٹریول کرتا ہے لفظ۔ جب وہ ٹریول کرتا ہے تو اس میں مختلف شیڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں استعمال کے ساتھ ساتھ، ان کو کہتے ہیں مولد مفہوم۔ جب وہ ٹریول کر کے جا رہا ہوتا ہے لفظ، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سینچریز وہ استعمال ہوا، صدیوں تک استعمال ہوتے 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 اس میں کئی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مختلف شیڈز اس میں آتے جاتے ہیں۔ تو ایک اس کا اصل مطلب ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر شیڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس کا مولد مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بات وہی تھی، غریبی، فقیری یا اس طرح کی لیکن اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جیسے ہمارے بھائی نے توجہ دلائی، بے نیازی کی ایک کیفیت اس میں شامل ہوتی گئی، ایک بے نیازی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ کہ وہ بے نیازی سے آگے چلتے چلتے ٹریول کرتے کرتے وہ ہوا کہ اب جو دنیا کی چیزیں ہیں ان سے میں اب بے نیاز ہوں۔ تو جب دنیا کی متاع سے بے نیاز جب ہوتا ہے پھر اور اس سے آگے چلے تو انہوں نے کہا کہ اب ایک طرح سے ترک دنیا ہو گیا، کہ یہ دنیا کی جو لہو و لعب کی زندگی ہے اس سے اب ترک اختیار ہو گیا۔ اب دیکھیں ٹریول کر رہے ہیں اور مختلف شیڈز اس میں آتے جا رہے ہیں، اور چلتے 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 فقیر ایک وہ بندہ بن گیا کہ جو اصل میں دنیا کے ساتھ ایک طرح سے نہ صرف یہ کہ بے رغبتی پیدا ہو گئی، اور اس میں ایک حد تک تھوڑی سی ایکسٹریمزم بھی پیدا ہو گئی اسی بے رغبتی میں۔ اب جی آپ کا مطلب ہے کہ کانٹیکسٹ جو ہے، لفظ کا جو کانٹیکسٹ ہے جب وہ بدلتا ہے تو اس کا سینس بدل جاتی ہے؟ کانٹیکسٹ نہیں، یعنی اس کا استعمال، یعنی ایک قوم ایک لفظ استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب لفظ پیدا ہوگا تو اپنے لفظ کے مفہوم کے ساتھ پیدا ہوگا، اور اس کا مفہوم اس لفظ کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا، وہ قطعی دلالت ہوگی، لیکن جب وہ ٹریول کرنا شروع کرتا ہے، یعنی صدیوں تک وہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر مولد مفہوم پیدا ہوتے جاتے ہیں، تو اب وہ لفظ جو ہے وہ آہستہ، چلیں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک لفظ ہے شاہد، تو شاہد کا لفظ فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، شاہد فاعل، مطلب کیا ہے، مشاہدہ کرنے والا۔ نہیں، گواہ کس نے کہا ہے؟ ابھی نہ کہے نا، اب یہ دیکھیں آپ نے وہ مثال دے دی، تو ابھی کیا ہے، مشاہدہ کرنے والے کو کہتے ہیں شاہد، یعنی دیکھنے والے کو۔ تو اب ٹریول کرتے 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 اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، گواہ، حالانکہ گواہ کا وہ لفظ اس میں نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ جو گواہ ہوتا ہے وہ اصل میں اس وقت مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے عینی شاہد آپ کے۔ تو اب یہ کیا ہوا، یہ بات آپ سمجھ گئے نا، لفظ کے استعمال نے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شیڈز ایڈ کیے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے ایک نیا مولد مفہوم پیدا کر دیا۔ آج اگر آپ کہیں گے عینی شاہد، تو وہ یعنی عینی شاہد گواہ کے معنوں میں آپ لیں گے اس کو، حالانکہ جب وہ لفظ پیدا ہوا تھا تو اس کا گواہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہے، وہ بہت اس معنوں میں لیا گیا ہے نا، مشاہدہ کرنے والا، سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہ اس کا مولد، تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لغوی معنی کے بعد جب آگے بڑھا تو اب اس کا ہمارے جو علماء متصوفین ہیں
انہوں نے اس کو ایک نیا رنگ دیا، اور اس کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ چلتے 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 بعض اوقات ایکسٹریم لائن پہ بھی چلا جاتا ہے کہ دنیا کے ساتھ بے رغبتی، دنیا کے ساتھ دنیا کو ترک کرنا، ترک دنیا دوسرے الفاظ میں. جی آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں جو لغوی اصطلاحی اور باقی معانی ہیں، ماشاء اللہ آپ کا جو علم بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ویسے عام لائف میں اس کو کہیں ریفر کرنا چاہیں، جیسے آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ہے، وہ اتنی بڑی ہے، بڑی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جو لفظ پہلے استعمال ہوا آج سے 1000 سال 800 600 سال پہلے، وہ اور پھر اس کا استعمال دیا ہوتا ہے کہ کس کتاب میں کہاں ہوگا. اس کے بعد پھر اس کے معنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بدلتے رہتے ہیں. تو 6ٹھی صدی میں کیا ہوا، 12ویں میں کیا ہوا، ابھی 1900 میں کیا ہوا. تو اس طرح کی کوئی اردو میں بھی ایسی کاوش ہے یا ایسی جو ہے وہ پبلیکیشن ہے جس میں جو آپ سے تو ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج یا بہت سی ایسی چیزیں جو نہیں سیکھ سکتے، تو اس کے لیے کوئی سورس؟ بہت سارے ہیں جی، بڑا کام ہوتا رہتا ہے، یہ اسی طرح کا بڑا کام ہوتا رہتا ہے. میں خود طالب علم ہوں اس کا، یعنی سیکھتا ہوں، میں بھی سیکھ ہی رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں کچھ بڑے جدید ترین دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا. جیسے مثال کے طور پہ ایک نام میں لیتا ہوں، ہمارے شان الحق حقی صاحب. انہوں نے تو آکسفورڈ انگلش اس میں کام کیا، ڈکشنری میں بھی. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں. جی جمیل الدین علی صاحب کی ڈکشنری بالکل وہ ذرا بڑے 12-13 ایگزیکٹلی. اس میں یہ ساری چیزیں ہمارے غالب نے اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو غالب نے بھی کام کیا. انہوں نے بولا جو تھا جس کو وہ کلکتے کا کھتری کہتے تھے، قاطع برہان کے نام سے ایک ڈکشنری. کاتب قرآن بڑی مشہور کاتب وہ نام کیا تھا اس کا، نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال اس کو وہ کلکتے کا کھتری کہتے تھے. انہوں نے دیکھیں اس کے سائڈ پہ وہ پوری اس کی تصحیح کی، اصلاح کی. تو یہ کام ہوتا رہتا ہے کہ لفظ کس معنی میں ہوتا رہتا ہے. اینی ہاؤ اپنے ٹاپک پہ ہم واپس آتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر یہ کس طرح. اب میں تیسرے جو ہماری کیٹیگری ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی تھوڑی سی، وہ یہ تھی کہ اب عرف، متکلم کا عرف، جو میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھایا. متکلم کا عرف سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو اپنی، لیکن یہ ہر بندہ نہیں کرتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بڑا آدمی ہوتا ہے کوئی جو اس طرح کا کام کرتا ہے کہ ایک لفظ کو اٹھایا اور پھر اس کو ایسے معنوں میں استعمال کر دیا کہ بس پھر وہ زبان زد عام ہو جاتا ہے. جیسے خودی کی مثال تو سب کو پتہ ہے نا. آج آپ جب کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، تو کوئی کیا سوچتا ہے کہ ایگو کو کر بلند اتنا؟ کبھی نہیں سوچتا. کیا وجہ کہ انہوں نے اس کو چھا گئے، اس لفظ کو ایسا ڈیولپ کیا کہ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ خودی کا کیا مطلب ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں متکلم کا. اور قرآن مجید میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ اقبال اب اس کو کس معنی میں لے لی، اس لیے میں اس کو متکلم کا عرف کہہ رہا ہوں. تو وہ کیا ہے، وہ جیسے ہمارے بھائی نے یہاں توجہ دلائی، یعنی زمین پر خدا کے سوا کسی کی احتیاج ختم ہو جائے. یہ ہے فقر، بس نظریں صرف خدا پر ہوں. اتنی سی بات. یہ ہے متکلم کا عرف. یعنی اب علامہ صاحب ان کو کس معنی میں لے رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس اصطلاح کو ایک اور اصطلاح بنایا انہوں نے، اور اس کو کہا فقر غیور. خطوں میں بھی استعمال کیا یہ لفظ، پھر انہوں نے شعر میں بھی کیا. تو بس اتنی سی بات تھی. یہ ساری بات میں نے جو سمجھائی ہے آپ کو، یہ سمجھ لیں اب ساری بات ہے، یہ مکمل ہے. لیکن یہ بات کو اگر شاعری کے اسلوب میں بیان کرنا ہو، اب اس کو چار چاند لگانے ہو، اس کو حسین انداز سے، حسین اسالیب سے بیان کرنا ہو، تو یہ ہے اقبال. یعنی بات اتنی سی ہی ہے، تو اس میں اب اس کو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے نا. اب دیکھیں ایک بات کوئی کرنا چاہتا ہے، مختلف اسالیب وہ اڈاپٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ اخبار میں کالم لکھ دیتا ہے، تو بات تو کنوے کر دی اس نے. ایک بندہ وہ ڈرامہ بنا دیتا ہے، پی ٹی وی پہ ڈرامہ آ رہا ہے جی، تو اس نے ڈرامے میں ایک بات بتا دی آپ کو، ایک پیغام دے دیا. اسی طرح ایک بندہ ہے وہ کوئی افسانہ لکھ دیتا ہے، ایک بندہ شاعری کرتا ہے. تو یہ مختلف کیا ہیں، جانراز ہیں. تو کون سا جانرا ہے جو آپ کے قلب پر جا کے اثر کرتا ہے، سیدھے آپ کے اندر ٹھک لگتا ہے جا کے، وہ جانرا استعمال کیا علامہ صاحب نے. یہ بات واضح ہوگی نا. ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ محاکات کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ محاکات، حافظے آپ کے ماشاءاللہ
یہ اچھی بات ہے کہ آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے یہ بھی آپ سے محاکات، یہ آپ ارسطو نے سب سے پہلے اس پہ بات کی تھی، اس کی ایک کتاب ہے آپس میں بات چیت کرنی کہتے میں عرض کرتا ہوں کم و بیش کہہ لیں آپ، ارسطو نے ایک کتاب لکھی تھی پوئزی، سب سے پہلی شاید شاعری پہ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ وہی تھی پوئزی۔ اس میں انہوں نے آپ یوں سمجھیں کہ شاعری ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس میں یہ بات کہی کہ شاعری کیا ہے، محاکات ہے، ان ادر ورڈس محاکات کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کا جو اثر آپ پر ہو رہا ہے، جو بھی کچھ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کی کیا فیلنگز ہیں واٹ ایور، اس کو آپ اپنے فن کے ذریعے سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک پینٹر نے پینٹنگ پیش کی اپنی، وہ ایک خاتون کی پینٹنگ تھی، اور اس کے جو پیر تھے خاتون کے، اس پر کوئی مور پنکھ کے ساتھ گدگدی کر رہا ہے۔ اس گدگدی کی وجہ سے اس خاتون کے چہرے پر آنے والی جھرجھری اور مسکراہٹ وہ اس پینٹر نے پینٹ کی۔ مونا ہی ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بتائیں جی کوئی انگریز؟ جی نہیں، میں تلاش کر کے، آپ تلاش کریں۔ ہاں تو لفظ لکھتے کیسے ہیں جو بول رہے ہیں؟ میم ہے حلوے والی، الف کاف کتے والی، پھر الف اور تے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ دیکھیں سب الفاظ تو صحیح ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ فیلنگز جو آپ نے خارج کے مشاہدے کے نتیجے میں محسوس کی، اور پھر اس فیلنگز کو، اس احساس کو دوسرے تک پہنچا دیا۔ ایگزیکٹلی، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اس کو مثال کے طور پہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں، حمید الدین فراہی کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام حمید الدین فراہی، ان کی ایک کتاب ہے جمرۃ البلاغہ، عربی میں ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات، بلکہ اس سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ مولانا شبلی نے ایک کتاب لکھی نا اس پہ، شعر العجم، تو شعر العجم میں انہوں نے ایک چیپٹر ہے ان کا شعر کی حقیقت و ماہیت، یہ ایک چیپٹر ہے اس کتاب میں۔ اس میں انہوں نے یہی اس چیز کو بیان کیا کہ محاکات کیا ہے، اور یہ واقعہ جو اورنگزیب کا میں نے ابھی سنا ہے یہ بھی اصل میں اس کتاب میں۔ لیکن جو یہاں آ جائیں، جو مثال کے طور پہ ابھی میں نے جمرۃ البلاغہ کا جیسے I'm سوری کہ یہ ہم ابھی تک شروع نہیں کیا آپ نے، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے کلاس لیٹ گئے ابھی تو ابھی ہماری باتیں چل رہی ہیں ادھر ادھر کی سائڈ نوٹس، نو ویز۔ تو یہ جو امام فراہی نے جمرۃ البلاغہ میں اس کو جیسے بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں، اب دیکھیے ذرا محاکات تو آپ کو کلیئر ہے نا، اب محاکات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بتائیں، آ گئی نا؟ تو محاکات تو صرف اتنی بات تھی کہ آپ جو بھی کوئی فن رکھتے ہیں، آپ شاعر ہو سکتے ہیں، آپ مجسمہ ساز ہو سکتے ہیں، آپ پینٹر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ فنون لطیفہ میں سے کوئی بھی آپ فنکار ہو سکتے ہیں، اب آپ جو کچھ محسوس کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے فن کے ذریعے سے دوسرے تک ٹرانسفر کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے محاکات، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ یہ متشابہات اور محاکات جو قرآن میں ہے اس سے کیا ڈفرینس ہے؟ نہیں وہ الگ لفظ ہے، وہ اصول ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے وہ اگر آپ سوال کریں گے تو اس پہ میں، متشابہات اور محکمات وہ ایک الگ چیز ہے۔ محکمات قرآن مجید کی ان آیات کو کہتے ہیں جو محکم احکام یعنی پختہ دیتے ہیں، متشابہات کہتے ہیں، متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی ہونا، ریزمبلنس ہونا، تو جس میں نادیدہ عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نادیدہ عالم کے بارے میں اس دنیا میں ملتی جلتی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کے بیان کرتے ہیں،
اس کو کہتے ہیں متشابہات. اس میں ہمارے ہاں کچھ غلطی لگی, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو جلدی سے بتا رہا ہوں. یہ تھوڑی سی بات غلطی یہ لگی کہ ہم نے متشابہات کو کچھ لوگوں نے غلطی سے مشتبہات سمجھ لیا. متشابہات جو ہے, متشابہات کو مشتبہات مشتبہ آتا ہے جس شبہ پیدا ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں, جن میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا معنی لے سکتے ہیں, اس لیے وہ وہ مشتبہات ہیں. ان ادر ورڈز ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں. بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں, اسی لیے میں نے اس کو سوال کو جانے نہیں دیا. میں نے کہا میم ہے کاف سے آگے. تو اس لیے یہ دھیان سے سن لیں. اب جو گو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ آپ نے اچھا کیا سوال اٹھا دیا. محکمات تو ہو گیا, محکم کا مطلب ہے نا محکم, مضبوط. تو آپ کہہ لیں کہ شریعت کی باتیں یا قرآن مجید میں جو احکامات ہوتے ہیں اس کو محکمات کہتے ہیں. دوسرے سادہ سی میں سمجھا رہا ہوں. اور دوسری کیا ہے متشابہات. متشابہ مشتبہات نہیں, سمجھ گیا. تو اس میں ایک سیکنڈ اجازت دیجیے. تو کیا فرق ہے؟ متشابہات ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ملتا جلتا قرار دینا. تو قرآن مجید میں متشابہات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں متشابہات وہ ہیں جو نادیدہ عالم کے بارے میں اللہ, مثلا وحی کیا ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. جبرائیل علیہ السلام کیسے آ کے نازل کرتا مجھے نہیں پتا. حور کیا ہوتی ہے, جنت میں دودھ کی نہریں کیسی ہوں گی, یہ سب میرے لیے کیا ہے, نادیدہ عالم ہے. نادیدہ عالم ہے نا. تو مجھے جب آپ حور کہیں گے تو میں اس کا میننگ سمجھتا ہوں. مجھے جب آپ دریا کہیں گے, دودھ کی نہر یا شہد کہیں گے, میوے کہیں گے, پھل فروٹ کہیں گے, تو میں اس کے میننگز سمجھتا ہوں, لیکن میں اس کا مصداق نہیں سمجھتا. یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ اگر ابھی کوئی آئیں جیسے یہ آئی ہیں تو یہ کہیں کہ میں رات کو مریخ سے آئی ہوں مثال کے طور پہ, اور مریخ پہ میں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی ہے جس کا جسم درخت کی طرح کا ہے اور اس کا چہرہ گائے کی طرح کا ہے اور اس کے پاؤں مچھلی کی طرح کے. اب میں گائے کو بھی جانتا ہوں, مچھلی کو بھی جانتا ہوں, درخت کو بھی جانتا ہوں, لیکن اس مخلوق کو نہیں جانتا, اور یہ بھی نہیں جانتی. یہ بھی میرے لیے وہ نام تجویز کر رہی ہیں یہاں کے جن سے میں یہاں واقف ہوں, گائے سے بھی, درخت سے بھی, مچھلی سے بھی وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جن چیزوں کے مصداق سے میں معنوں سے نہیں, معنوں سے تو ہوئی, میننگ سے تو ہوئی, مصداق سے واقف ہوں, اس کے ساتھ کسی چیز کو ملتا جلتا قرار دے کے بیان کرنا, اس کو کہتے ہیں متشابہات. جیسے انہوں نے وہ بیان کیا وہ چیز مریخ کا, ان کا تصور کچھ اور ہے, انہوں نے مجھے وہ بات بتائی, میرے ذہن میں وہی نقشہ آیا مگر وہ اور نقشہ تھا. جو ان کے ذہن کا نقشہ ہے وہ میرے ذہن کا نقشہ نہیں ہے. صحیح ہے, مگر میرے ذہن میں بھی چیز آ گئی. اب وہ میرے لیے تو اصل مقصد اتنا ہی تھا کہ آپ کو آپ کے علم کی حد تک اس چیز کو, تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کہتے ہیں نا جنت میں یہ ہوگا, جنت میں یہ ہوگا, تو اصل میں آپ کو اس دنیا میں آپ جن چیزوں سے واقف ہیں وہی سمجھ آئے, ان سے ملتا جلتا قرار, اس لیے اس کو متشابہات کہتے ہیں. سوری, آپ نے پچھلی دفعہ یہ ریفرنس دیا تھا اقبال کا, شاید اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں. منزل و مقصود قرآن دیگر است, رسم و آئین مسلمان دیگر است. تو اللہ متکلم ہے قرآن کا, جی اس کے جو ذہنی بالکل چیزیں وہ ہم نے سمجھ. صحیح, بالکل. جی آگے بڑھیں, جی اجازت ہے. جی اس کا سنگولر بھی محاکات کا سنگولر فارم بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے, یہ جمع ہے نا, وہ لفظ یعنی الف اور تے نکال دیں, یعنی محاکات کی بجائے میم ہے کاف تے. ڈکشنری میں آپس میں بات کرنے کو محاکات بولتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, تو آپ یہ سمجھ لیں, یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی. اچھا, تو کسی کو بھیج دیتے ہیں آپ بجائے نیچے جانے کے. تو اسی میں آپ دیکھیں نا, ایک لغوی بات ہوگی جیسے آپ نے کہی, ہاں, تو ایک اصطلاحی بات ہوگی. تو یہ بھی اچھا آپ نے کیا کہ اس طرح ہم سمجھیں. تو کہاں تک ہماری بات پہنچی تھی؟ غالب سے زیادہ اچھا فکر سے شروع کیا. فقر سے شروع, فقر سے جی جی ان پریزابیوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام, ہاں, قدرت حق سے یہی ہو رہے گر وہاں ہوگی. واہ واہ, خوبصورت. تو وہی دیکھیں نا, ہم جو تصور ہم یہاں پہ لیتے ہیں ان کے مطابق پھر ہم اس کو بیان کرتے ہیں.
तो एनी हाउ हम मुहाकात की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि मुहकमात में और मुहाकात में फ़र्क है। मुहकमात एक अलग चीज़ होती है और मुतशाबिहात वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैं शायद ये अर्ज़ कर रहा था कि इमाम फराही ने जो जमरतुल बलागा में इसको बयान किया है ना कि ये शायरी असल में क्या चीज़ है, तो वो ये कहते हैं कि इंसान के बातिन पर जो वारदात गुज़रते हैं, आप कोई भी इंसान जो उसके बातिन पर किसी खारिज की चीज़ का जो असर होता है, वारदात का मतलब है कि उसने उसको बात यानी उसकी फीलिंग्स, जैसे आप कह रहे थे ना कि उसने क्या महसूस किया, उसके बातिन पर जो वारदात गुज़रते हैं उसका लतीफ़ अंदाज में बयान, उसको शायरी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वारदात तो वो होती है हाँ, जो वो पुलिस वाली नहीं, ये अरबी का लफ्ज़ है वारदात, कल्बी वारदात। तो जो वारद होना किसी आप यूँ कहाँ वारिद, जैसे आप कह रहे हैं जो हैपनिंग्स गुजरती हैं आपके बातिन के साथ, आपके इनर सेल्फ के साथ जो हैपनिंग्स होती हैं, और होंगी कैसे, खारिज से। आप कुछ देखा आपने, हो सकता है आपको बड़ा खूबसूरत महसूस हो सकता है आपको बदसूरत, आपकी जो एस्थेटिक सेंसेस हैं उसके ज़रिए से आप कुछ महसूस करते हैं। तो जो कुछ आपने महसूस किया, अब उसका इंसान इजहार चाहता है, उस एहसास का इजहार चाहता है। अगर वो इजहार उसका जॉनरा अगर लतीफ़ है तो उसको शायरी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि नसर में भी लोग शायरी कर लेते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि वो लताफ़त उसकी ऐसी होती है नसर में। तो ये आपको मैंने अर्ज़ की, दो बातें अब तक हमने अर्ज़ की। एक ये कि लुग़वी माना क्या होता है, इस्तिलाही माना क्या होता है, और मुतकल्लिम का उर्फ़ क्या होता है, ये तीन चीज़ें। और दूसरे हमने ये देखा कि उसको जब आप जॉनरा के तौर पे आप अडॉप्ट करते हैं शायरी को, यानी अल्लामा इकबाल इतनी ही बात कहना चाहते थे जितनी हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अब देखें कि वो किस किस रंग से उसको बयान करेंगे, किस किस अंदाज से, कौन कौन से असालीब वो इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं ना, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो। तो ये है शायरी, ये है शायरी। तो ये बात सिर्फ आपको समझाना इतना ही मकसूद थी कि शायरी क्यों, अगर बात इतनी है, मैं ऐसे ही कर दिया आपने कन्वे, बात तो ख़त्म होगी नहीं, वो शायरी क्यों, क्योंकि वो दिल को जाके असर करती है। ताकत क्या है, पर नहीं, ताकत परवाज़। तो हमने ये इसमें से कुछ शेर पढ़ लिए थे। अब ये देखेंगे, मुझे बहुत अच्छी नज़म लगती है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी, थोड़ी सी ज़हमत आपको दूंगा, थोड़ा मुझे पानी दे दीजिएगा, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे कंपैरेटिव उसकी एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए ये हमने ये पढ़ा था, इसको मैं दोहरा रहा हूँ, फिर हम आगे इसको बढ़ेंगे। एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी। नखचीरी क्या मतलब है? शिकार करने का तरीका जो होता है ना, नेज़रबाज़ी है जो। जी, यानी शिकार हो जाना, नखचीरी। नखचीर कहते हैं शिकार को। तो सयाद कौन होता है? शिकारी, जो शिकार कर रहा है, लेकिन वो खुद शिकार हो जाए, वो खुद शिकार हो जाए। वो है ना, हमा आहू आने सहरा सरे खुद निहादा दार कफ, सुना हुआ है ना, कि सहरा के सारे हिरन, हमा आहू आने सहरा सरे खुद निहादा दर कफ, अपने हाथों में अपने सर लेके आ रहे हैं कि आज तू मुझे शिकार करने आया है, ये ले हमारा सर हाजिर है, हम आहू आने सहरा। तो यहाँ पे क्या है, एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी। अब ये देखो, कहना क्या चाह रहे हैं, फ़क्र को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि फ़क्र क्या है। एक फ़क्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, यानी बादशाहत, हुकूमत, जहान को अपनी गिरफ्त में ले लेना, जहाँ दुनिया, और गीर आपको पता है ना, गिरफ्तन से। पहला मिसरा है इस शेर का, इसमें तो ये नहीं समझ आती कि गुर्बत पहले एक जो गुर्बत की किस्म हो, वो एक शिकार को शिकार करने का तरीका सिखाती है, तो एक किस्म का फ़क्र है जो असरार जहांगीरी के बारे में बता रहा है। ये तो कंपैरेटिव सेंटेंस इसकी गुर्बत से इंसान को तरीका आ जाता है ना, जिस तरह के वो कहते हैं ना कि मदर इज
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये पहला वाला। इसमें देखें, इसमें जो एक फ़क्र का नेगेटिव पहलू और फ़क्र का मस्बत पहलू, उनको साइड बाय साइड रख के वो बताना चाह रहे हैं। उसका एक एनालिटिकल आप कह लें ये क्या हुआ। लेकिन फकर जो है वो यहाँ गुर्बत के उसमें तो नहीं है। पहला तो उसमें लगता है, दूसरा जो है वो दूसरा लगता है। अभी आप देखते जाएं कि कौन सा, अभी आप सिर्फ ये ज़हन में रखें। अभी आप ये देखें, आपको माने तो तीनों समझ आ गए ना, तीन हमने माने इब्तदा में बता दिए, तीनों माने आपके जहन में हैं इस वक्त, एक लुग़वी, एक इस्तिलाही और एक उर्फ़ मुतकल्लिम। तीनों माने आपको पता है ना, तो आप वो तीनों अपने जहन में रखें। आप इस नज़म को पढ़ें और इसका आप इसका हाज़ उठाएं, इसको एंजॉय करें। यही मैंने आज किया ना कि बात मैंने मुकम्मल कर दी थी अपनी, आप ज़रा इसको एंजॉय करें शायरी के एतबार से, कैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को। ज़हन, एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरार। असरार का पता है ना, सिर की जमा है, सिर की जमा है। हाँ, आपको शायद पीछे असरार सिर की जमा है। सिर का मतलब था राज। तो जहांगीरी के राज खुलते हैं उस फ़क्र से। एक फ़क्र की किस्म ये है जिससे आप दुनिया को फ़तह करने के राजों से आशना हो जाते हैं। एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फ़क्र से मट्टी में खासियत अक्सीरी। क्या खूबसूरत है, यानी आप इसका मज़ा लें ज़रा इस कलाम का। अब आपको बात सारी वाज़ेह होनी चाहिए क्योंकि हमने बड़ी तफसील के साथ बात कर ली कि फ़क्र क्या क्या है। अब आप देखें कि कैसे वही बात है कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से, आप मुख्तलिफ़ गूनागूं अंदाज से, मुख्तलिफ़ उसकी अल्फाज की बू कलमूनी से और अपने असालीब से उसको बयान कर रहे हैं। अब देखें बयान करने का अंदाज़। एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी। दिलगिरी यानी दिल गिरफ्तगी, मायूसी, दिल गीर होना। गीर तो पता है ना, अब आपको मैंने बहुत आंसुओं से भरा होता है ना। गीर के बारे में तो मैंने बहुत बता दिया ना। अब आपको हाफ़िज़ा है, याद है कि नहीं। गीर गिरफ्तन से है ना, गिरफ्तन से गिरद और उससे गीर पकड़, ये उसका बिल्कुल। ये हम कफगीर कहते हैं ना, मैं हमेशा आपको मिसाल देता हूँ कफगीर। कफ कहते हैं हाथ को, कफगीर। तो उससे आप याद रखें, जहाँ जहाँ गीर आता जाए आपके जहन में वो आना चाहिए, अंडा आ जाना चाहिए जहन में। एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, और एक फ़क्र से, अब देखिए मुकाबला कर रहे हैं, एक फ़क्र से मट्टी में खासियत अक्सीरी। अक्सीरी शिफा, समझ आ गई ना इस शेर की। एक फ़क्र है शब्बीरी, इस फ़क्र में है मीरी। ठीक है ना, एक फ़क्र में है शब्बीरी, इस फ़क्र में है मीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना। उल्टा कर दिया, पहले फिक्र ऊपर नीचे था, फिक्र एक साथ आ गया। अब एक साथ आ गया, बहुत अच्छा। मेरी का मतलब अपना पर्सनल, मीरी का मतलब है बादशाह, अमीर होना, यानी सिपा सालार होना, किसी का लीडर। लीड करना। क्लियर है जी, आगे बढ़ें। अब ये देखें, ये बाले जिब्राइल के अशार हैं। फ़क्र, ये मैंने फ़क्र से मुतल्लक़ अशार जमा किए हैं। अब मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना कि हम इसको थीमेटिकली लेके चल रहे हैं। मकसद क्या है कि उस एक थीम को, उस एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें कि अल्लामा इकबाल इसको कैसे बयान करते हैं। तो आज आप यूँ समझ लें कि फ़क्र बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए आज की नशिस्त के बाद कि फ़क्र क्या है, फ़क्र के इस्तिलाही माने क्या हैं, उसका मुअल्लद मफ़हूम क्या है और ख़ुद अल्लामा साहब उसको किन मानों में इस्तेमाल। फ़क्र के हैं मोजज़ात ताजो सरीरो सिपाह, फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाह। ताजो सरीरो सिपाह, ताज, ताज का तो पता ना, शरीर तख्त जिसके ऊपर बादशाह बैठता है, सिपाह उसकी फ़ौज। तो तीनों चीज़ों को जमा कर दिया, ताजो सरीरो सिपाह, उसकी फ़ौज, उसका ताज और उसका तख्त, उसके मोजज़ात हैं। फ़क्र के हैं मोजज़ात, ये तीनों चीज़ें। फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाह। असल में तो ये इसकी हुकूम, अब आप समझते जाएं। थोड़ा सा मैं रुक के बता दूं दोबारा। मुतकल्लिम का उर्फ़ क्या था, कौन बताएगा? उर्फ़ मुतकल्लिम
फ़क्र फ़क्र उर्फ़ मुतकल्लिम में क्या मतलब है उसका? गरीबी जैसे नहीं, वो लुग़वी है, लुगात से ऊपर लेके वो लुग़वी था, अच्छा समझे ना? एक इस्तिलाह से भी ऊपर चला। हाँ, एक लुग़वी हमने बताया, एक इस्तिलाही बताया, एक जी सर ये एक दफा आप बेनियाज़ी दोबारा बता दें, हम लेट आए हैं। इसमें तीनों मीनिंग तो हैं। बेनियाज़ी बेनियाजी और हर चीज से अलग अल्लाह अल्लाह के अलावा हर अल्लाह से चीज़ सिवा से किसी की के ऊपर हमने तीन मानों में इसमें बयान किया था, एक लुग़वी, एक इस्तिलाही, एक उर्फ़ मुतकल्लिम। लुग़वी मानों में यही है। फ़क्र का मतलब क्या है? फ़कीरी, यानी गुर्बत, अफलास, ठीक है, वो जितनी आपको पता है सारे हैं इसमें। अब इससे ऊपर उठ के इस्तिलाही मानों में जो हमने हमारे मुतसव्विफ़ीन उलमा ने इस्तेमाल किया, जैसे मिसाल के तौर पे उसके मैंने बड़ी तफसील से बताया कि शेड्स आते जाते हैं। उसमें क्या है कि आप जैसे उसमें बेनियाज़ी आ गई, तो जब कनात ये चीज़ें आती जाती हैं तो फिर आते आते आहिस्ता आहिस्ता आप दुनिया की माल और दुनिया की मता और इसको अब लाहव लहब समझते हैं, और फिर इससे किनारा कशी आहिस्ता आहिस्ता होती होती बेरग़बती, और फिर बेरग़बती एक हद तक चलते चलते तर्क दुनिया बन जाती। तो ये जो सारा एक है, तो इसको इस्तिलाही मानों में हम लेंगे, ठीक है। रब्बानियत आप उसको कैसे? रब्बानियत उसी की एक शक्ल है, उसी की एक शक्ल। तो ये हो गया। और मुतकल्लिम का उर्फ़ का क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया था कि एक जो बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा होता है वो इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठा के एक ख़ास माने में उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अल्लामा इकबाल ने उसको किस माने में इस्तेमाल किया हुआ है, ये उसके उनके कलाम से आपको पता चल जाएगा। और उसके लिए उन्होंने फ़क्र गयूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो क्या है कि एक गयूर गैरतमंद इंसान का फ़क्र क्या है? वो ये है कि वो ज़मीन पर, अब ये मैं बता रहा हूँ, ज़मीन पर अल्लाह के सिवा किसी और की एहतियाज बाकी ना रहे। यह है फ़क्र, ज़रूरत, उसकी मोहताजी ना रहे, सिर्फ मोहताजी किसकी है? अल्लाह की। तो ये इसको कहते हैं फ़क्र। ये वाज़ेह होगी बात। ये मतलब इकबाल का ये इलामा इकबाल का है। ये उनका है। अब इसको उन्होंने लेके उसी से लिया है, उसी से लेके अब आप देखते जाएं, इस कलाम में देखते जाएं कि उसका क्या मतलब। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँगा कि शेर का मुश्किल मीनिंग्स जो हैं वो मैं बताता जाऊँगा, बाकी आप शेर को ज़रा लुत्फ़ उठाएँ, क्योंकि वरना तो इस महफ़िल का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि असल में तो ये शायरी की महफ़िल है। इसको उस कलाम को कैसे उन्होंने इस बात को, ये जो सारी बात मैंने एक समझें बोरिंग अंदाज में आपको बताई है, उसको आप एक हसीन उसलूब में कैसे वो बयान कर। इल्म का मकसूद है इल्म का मकसूद है पाकी अक्ल खिरद। फ़क्र का मकसूद है इफ़्फ़त क़ल्ब व निगाह। क्या खूबसूरत है। अब क्या किया? दो चीज़ें कर दी। एक तो फ़क्र के बारे में बता रहे थे, और दूसरे इल्म और फ़क्र को तकाबुल में लेके आ गए हैं और उनका तकाबुल कर रहे हैं। तो इल्म जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी मुक़द्दस चीज़ है, लेकिन वो क्या करती है? वो तज़किया करती है आपकी अक्ल का। अक्ल व खिर्द मुतरादिफ़ात हैं, ये मुतरादिफ़ातें एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। तो उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इल्म का, इल्म बढ़ता जाएगा तो उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? तज़किया अक्ल, पाकी ये अक्ल खिरद, समझ गए ना? तज़किया अक्ल आपकी अक्ल की पाकीज़गी की नशो नमा का बायस बनता है इल्म, ठीक है। और फ़क्र का मकसूद है, मकसूद क्या मतलब है? यानी उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद। फ़क्र का मकसूद है इफ़्फ़त क़ल्ब व निगाह। इफ़्फ़त का मतलब वही पाकीज़गी, यानी तज़किया। तो क़ल्ब व निगाह, आपका क़ल्ब और आपकी निगाह, इसकी पाकीज़गी। तो तज़किया क़ल्ब, या दूसरे जब क़ल्ब व निगाह का मान आएगा, ये भी हम इंशाल्लाह इस थीम पे भी बात करेंगे। कल हम ये सारी थीम्स पे करेंगे, ज़ौक़ व शौक़, ज़िक्र व फ़िक्र, ये सारी थीम्स हैं ना मुख्तलिफ, अल्लामा इकबाल इस पे करेंगे। अभी हम इस पे हैं फ़क्र पे। तो क़ल्ब व निगाह जब बात करते हैं तो उससे मुराद क्या होती है? वही खुद ही, असल में उसका सेल्फ़, इंसान का सेल्फ़। तो आप दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि तज़किया नफ्स। वो एक शेर में जो इकबाल कहते हैं, फिरत को गुलामी से आज़ाद कर जवानों को भी रोज़गार कर। तो वो उस शेर में वो अकल ही को अकल को कहते हैं हाँ, कि अकल भी गुलाम है किसी चीज़ का। 100% अकल को गुलाम। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं
क्या है दूसरा? इश्क। इश्क पर अमल की बुनियाद पर। दिल और दिमाग बीच में आ गया ना, फिर से भी फर्स्ट वाली। तो आप देखें इल्म को और फ़क्र को एक जगह पे रख के दोनों का तकाबुल कर दिया और दोनों को पॉजिटिव लिया है। ये ना समझें कि उनका कोई मनफी माना लिया, इल्म को भी पॉजिटिवली लिया, लेकिन उसको बुनियाद बना के बता दिया कि दोनों तज़किया ही कर रहे हैं, लेकिन एक अक्ल का, अक़लियत का और अक्ल व खिरत का तज़किया कर रहा है और दूसरा क़ल्ब व निगाह का। समझ आ गई बात की? मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जा रही, मेरे जहन में वो बात जी जी अटक गई जी कि वो जो कहते हैं एक फ़ख्र है शब्बीरी, तो वो इमाम हुसैन से लिंक है। तो 100 वो क्या फ़ख्र, इमाम हुसैन का फ़ख्र क्या था? फ़क्र यही था कि वो कोई, नहीं है अल्लाह तवक्कुल थे ना। हाँ यानी कोई किसी हुकूमत या मालो मता या इस्तेमार, ये उनका मकसद नहीं था, ठीक है। और उन हक़ के लिए खड़े थे और अल्लाह ताला पर उनकी निगाह थी, एक ही उनका वही था, मुसलमान सरमाया शब्बीरी। तो सरमाया शब्बीरी क्या है? यही कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये काम किया था, ठीक है ना, वाज़ेह है? आगे बढ़ते हैं जी। इल्म फ़कीह हो हकीम, फ़क्र मसीह हो कलीम। आप यहाँ पे भी देखिए उन्होंने क्या किया कि दो रवा, फ़कीह हो हकीम, फ़कीह कहते हैं, ये फ़कीह गलत लिखा हुआ है लेकिन इसको ज़रा आप इग्नोर करें। फ़कीह कहते हैं यानी जो फ़िक़्ह के इल्म को जो तदवीन करते हैं, यानी आप यूँ, ये तो पता है ना आपको फ़िक़्ह क्या होती है? मुफ्ती होते हैं जो फतवे शतवे देते हैं। नहीं मुफ्ती नहीं, jurisprudence, yes, jurisprudence is a very good word. जैसे फ़िक़्ह इमाम जो मालिक हमारे है, कुरान इमाम सुन्नत में हनफी है। बिल्कुल, क्या होती है फ़िक़्ह, क्या होती है और फ़कीह क्या होता है? कोई बताएंगे? jurisprudence जैसे इन्होंने बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो अल्लाह के जो कुरान पाक में अहकामात हैं उसको वो डिटेल से एनालाइज करके फिर पब्लिक को पेश करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपने, बहुत वेरी गुड, एक्सीलेंट माशा। देखिए एक होता है डिवाइन डायरेक्टिव्स, डिवाइन डायरेक्टिव्स यानी जिसको हम कहते हैं अहकाम शरिया। अहकाम शरीयत क्या चीज़ है? शरीयत अल्लाह ताला के वो अहकामात हैं जो जिनका सोर्स कुरान और सुन्नत होता है, यानी कुरान और सुन्नत में मौजूद डूज़ एंड डोंट्स, कुरान और सुन्नत में मौजूद डूज़ एंड डोंट्स, उसको क्या कहते हैं? शरीयत, शरिया। डूज़ एंड डोंट्स को क्या कहते हैं? शरिया। इनको कहते हैं डिवाइन डायरेक्टिव्स। ये अल्लाह के अहकामात हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? या कुरान से या कुरान और सुन्नत से, ठीक है। अब इन्हीं कवानीन को लेके मिसाल के तौर पे दुनिया में और बहुत सारे नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो मिसाल के तौर पे एक सवाल आ जाता है जी मैं जहाज़ में नमाज़ पढ़ सकती हूँ या नहीं। अब उस ज़माने में उस ना कुरान में है ना सुन्नत में जहाज़ का तो कोई जिक्र नहीं होगा, राइट। अब इस सवाल का जवाब देना है और उस पर कोई कानून साजी करनी है, इसको कहते हैं फ़िक़्ह। यानी जो कुरान और सुन्नत में अहकामात नहीं हैं, अगर हैं तो वो तो शरीयत हो गई। अगर डूज़ एंड डोंट्स कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं तो वो क्या हो जाएगा? शरीयत। तो शरीयत में और फ़िक़्ह में क्या फ़र्क है? ये कि जो उसके बाद कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, ये ज़हन में रखें, ये ज़हन में रखें, कुरान और सुन्नत की बुनियाद, उसी को बुनियाद बनाकर, यानी बुनियादी तालीमात वहीं से लेनी है, ड्राइव उसी से करना है, इस्तेंबात उसी से करना है, लेकिन नए आने वाले सवालात का जवाब तलाश करना और फिर उसके मुताबिक कानून साजी करना। जो कानून साजी करते हैं उनको कहते हैं फ़कीह। जो इज्तिमा वगैरह जो सारा हो जाता जी है, मुख्तलिफ मौलाना मतलब मिलके फ़कीह मिलके जो बात बनाते हैं। नहीं उनके इजमा नहीं, इजमा और चीज़ है, इजमा और चीज़ है, इसको दोबारा समझ लें ज़रा, ये शायद इम्पॉर्टेंट है। ये भी बात की इस्तिलाह है। पहले फ़िक़्ह की जो है ना, जो ये फ़क़ीह का ये मतलब ये भी बाद में जी बिल्कुल, पहले क्योंकि तो दीन की समझ बूझ के हवाले से जो है वो उसी पे इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली, यानी ये बात बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही। यही बात इसकी दलील है कि बात की ज़रूरत है। यानी जैसे मैंने अभी जहाज़ की मिसाल दी ना, तो बाद में जो मसाइल पैदा होते गए, जो जिनका जवाब बराह रास्त कुरान और सुन्नत में अगर है तो फिर क्या होगा? हमें समझ नहीं आती। नहीं समझ नहीं, अगर तो कुरान और सुन फिर उसको शरीयत, अगर तो हाँ जी, तो उसके लिए एक ही बंदा
बताइए अपनी मर्जी से दे सकते हैं, उसके लिए भी तो नहीं नहीं कुछ उसके उसको लिए ऑफ कोर्स बंदा नहीं दे सकता, वो तो क्वालिफिकेशंस होंगी वो ज़ाहिर है, अब हम उसकी मतलब तफसील में नहीं हाँ, उसका तरीका होगा जैसे शिया विलायत फ़क़ी को कहते मानते हैं। हैं। तो अब लेट्स नॉट गो इन टू मच डिटेल, मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ का बताना है आपको कि फ़क़ीह क्या होता है। फ़क़ीह वो बंदा होता है जो फ़िक़्ह का इल्म जो है वजूद में लाता है। और फ़िक़्ह का इल्म क्या होता है? शरीयत में जो अहकामात नहीं हैं उनकी तदवीन, ठीक है। और शरीयत क्या होती है? कुरान जो अहकामात अल्लाह के कुरान और सुन्नत में आ गए। ये इसलिए मैंने इस तरतीब को जो है इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं आप। ना कहें तो मेहरबानी होगी। यानी इसको इतनी बात ही रहने जो मैंने अर्ज़ किया, यानी समझ आ गई आपको? शरीयत क्या होती है? डिवाइन डायरेक्टिव्स, डूज एंड डोंट्स इन कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। और जो शरीयत में नहीं है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं है ना, मैंने आपको बताया अभी, आप AI के बारे में सवाल कर सकते हैं, गाड़ी के बारे में कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो बराह रास्त नहीं मिलती। के हिसाब से सवाल है, जो लेकिन फिर फिक्र हनफी फिक्र हम्बली हम क्यों कहते हैं कि उनमें सारी शरीयत भी तो उसमें ही होती है, वो डूज एंड डोंट्स वो बताते हैं, वो सिर्फ वो बातें तो नहीं बताते कि जो नहीं है शरीयत में हम, लेकिन उसका फिक्र हनफी फिक्र हम्बली फिक्र मालिकी कहते हैं ना। इसका मतलब है इसमें से नहीं निकलने देंगे आप। नहीं लेकिन मतलब आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं ना कि शरीयत है वो चीज़ डिवाइन डायरेक्टिव है, और फिक्र वो चीज़ है जिसके बारे में नहीं है वाज़ेह हुक्म, बट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर, बिकॉज ये सारे जो चार हमारे हैं इमाम, वो तो वही बता रहे हैं जो शरीयत में आया, वो सिर्फ वो चीज़ें तो कवर नहीं करते जिनके बारे में डिवाइन डायरेक्टिव नहीं है। नहीं, आपने एक लफ्ज़ मिस कर दिया सर, बाकी सारी बात आपकी सही है। अच्छा मैं सुनूं, कौन सा? वो ये था कि जो फुक़हाए कराम जी, जी। कानून साजी करते हैं वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर करते हैं। नहीं वो तो सही है, वो तो सही है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप बताएं मुझे, कोई एक सवाल ऐसा आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जहाज़ में नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, आप कुरान से या सुन्नत से ही बताएं इसका जवाब। नहीं मैं नहीं दे रही, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप समझ तो लेना फिर नहीं, इसको। लेकिन मुझे समझ आई आपकी बात, मैं ये कह रही हूँ कि शरीयत से कैसे डिस्टिंक्शन इसी तरह ना कि शरीयत हम ये कहते हैं, उन्होंने अपने फिक्र के अंदर वही चीजें रखी हुई हैं ना, तो शरीयत और फिक्र टुगेदर क्यों नहीं जी। होगी? इनके सवाल का जी। जवाब देना चाहूँगी। कुरान मजीद में औरत की इद्दत के लिए सलासता कुरू का लफ्ज़ आया है, यतरबस्ना बिअनफुसिहिन सलासता कुरू, जी, जी। कि चाहिए इन औरतों को अपने आप को 3 कुरू रखें। जी जी तो शरीयत का हुक्म कुरान में आ गया। अब इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दरमियान इख्तिलाफ कुरू पर है। जी लफ्ज़ कुरू जो है वो हैज़ और तोहर दोनों के लिए इस्तेमाल माल होता है। तो एक ने एक मायने लिए, Interpretation एक दे दी। दूसरे मायने। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने सलासता कुरू से सलासा को लिया कि हमें 3 तोहर पूरे करना होगा, समझ गई। ठीक है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कि सलासा क्योंकि ये जो है अदद और मादूद का कानून क्या है कि अगर वो मुज़क्कर है तो उसके साथ मुअन्नस आना चाहिए, तो सलासा के साथ मुअन्नस जो है वो तोहर आ रहा है। तो उन्होंने मायनों पर बात करते हुए औरत की हैज़ जो है उन्होंने कहा कि 3 तोहर इद्दत होगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि तलाक के बाद 3 हैज़ जब पूरे होंगे तो कुरान का उसूल इद्दत पूरी हो जाए। तो क्या इसलिए बड़ी जो खूबसूरत इसलिए मिसाल उन्होंने- इन्होंने दी, सही, बिल्कुल सही। ये बड़ी खूबसूरत। इसलिए तलाक तो आप देखिए शरीयत तो आपको पता चल गया कि उस हद तक है कि अल्फाज इस्तेमाल हो गए सलासा तो कुरू तो के। हम डिस्टिंक्शन करेंगे दोनों में, हम मिलाएंगे नहीं दोनों को, शरीयत अलग और फिक्र अलग। 100% 100%। नहीं, हाँ, अगर फ़िक़्ह और शरीयत डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, वो मैं पूछूंगा, आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं तो ओके, देन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द। नहीं नहीं 100% डिस्टिंक्शन है। अगर डिस्टिंक्शन नहीं है तो फिर तो वो शरीयत ही होगी, यानी फर्क फिर क्या फ़िक़्ह कहने की ज़रूरत क्या है? फिर फर्क क्या? तो ये इल्म और फ़क्र का जो यहाँ पे कंपैरिजन है, क्या हम कह सकते हैं कि इल्म कुरान का इल्म है और फ़क्र जो है वो फ़कीह के जैसे इंटरप्रिटेशन? ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये डिस्टिंक्शन तो ज़रूर होगी ना कि फ़िक़्ह की और शरीयत की। अब बात ये है कि अब एक बंदा जब कानून साजी करता है तो ये उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं। ये तो 4 आइमा को तो हम जानते हैं ना, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा और इमाम पांचवें को ना शाफी। भूले, पांचवें को मत भूले, इमाम जाफर सादिक पांचवी फ़िक़्ह जो जी है जी ना, मैं वही अर्ज़ करने लगा, उसको हाँ याद रखें। मैं वही अर्ज़ करने लगा था कि 4 को तो हम ज़बान से आम है ना सबके, 4 आइमा जिसको आइमा 4 आइमा कहते हैं फ़ुक़हाए कराम, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम हम्बल और अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी, इन 4 को तो सब जानते हैं। एक तो सबसे अहम जो है इमाम जाफ़र सादिक हैं, जो इनके इनके असातिज़ा में से हैं। उनके उस्ताद थे। लेकिन इनके अलावा भी कमोबेश 200 के करीब बड़े फ़ुक़हाए कराम हैं,
बड़े, जैसे सुफियान सौरी हैं, बहुत और हैं, यानी नाम लेते जाएं आप। हवाई जहाज तो इन चारों पांचों के ज़माने में भी नहीं था ना, तो वो बाद में आते रहेंगे, फुक़हा कराम आते जाए। इनके दरमियान, इनके ज़माने में जो मसाइल आए नए, जहाज़ तो आपके ज़माने में इसलिए उसकी मैंने मिसाल दी, जो इनके ज़माने में मसाइल आए उन पर वो ना सिर्फ ये कि वो फ़िक़्ह तदवीन करते थे, बल्कि उसकी तदवीन करते थे और उसको यानी कानून साजी भी करते थे। तो असल में फ़क़ीह उनको कहते हैं। जो अब के फ़क़ीह हैं वो पुराने वाले फ़क़ीहों की बेस पर आगे नहीं, बेस एक ही है, बेस साहब की कुरान और सुन्नत है, शरीयत से लेते हैं। बेस कुरान और सुन्नत ही है। इनकी बेस नहीं है ना, इन्होंने किसी दूसरे की बेस ली है। जो इनकी बराह रास्त अंडरस्टैंडिंग कुरान मजीद की है उसी पर भी चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनको रद्द ही कर देते हैं, लेकिन सब मतलब उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन बेस अगर आप कहेंगे तो वो कुरान और सुन्नत ही है। समझ गया? तो फ़क़ीह पे काफ़ी टाइम हमने लगा दिया, लेकिन ये कि अब समझ आ गई कि फ़क़ीह क्या होता है और फ़िक़्ह क्या होती है। ठीक है, ये फिर पढ़ेंगे, बहुत मैं हाँ अगली दफ़ा फिर पूछिएगा तो फिर वही जवाब। हाँ, इल्म फ़क़ीह हो हकीम, फ़क्र मसीह हो कलीम। अभी हमने एक लफ्ज़ दिया है फ़क़ीह, दूसरा लफ्ज़ है हकीम। इसका हिकमत से, हिकमत से है कौन? डॉक्टर जिसमें होता है। यही जैसे मैं इसीलिए पूछा कि बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं ना, डॉक्टर वाला हकीम जो होता है, जो वो भी हकीम होता है। हर्बल मेडिसिन, हकीमुल उम्मत, जो रूह का इलाज करने हकीम वाला। मैं खुद हकीमुल उम्मत है। एग्जैक्टली। और बताएं ज़रा हकीम के, साइंटिस्ट के मानों में भी आ सकता है, और बताएं ज़रा, बहुत सारे हैं ना, फ़लसफ़ी के मानों में भी आता है हकीम, हिकमत वाला। यस, हिकमत वाला, जैसे अब जब आप कहते हैं ना हिकमत वाला, तो फिर तो वही आ गया, जैसे इन्होंने कहा विजडम, तो वो तो हो गया। लेकिन एक मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे, मुशाहिदे के ऊपर बेस करके जो चीज़ हो, नहीं इसको देखें, हाँ सही वक्त पर सही फैसला करना है हिकमत का। हकीम जो किसी मर्ज विजडम के मानों में आता है किसी मर्ज को वो करके वो तो हो गया था। देखिए इसमें मैं चले अर्ज़ करता हूँ, इसमें जो दोनों लफ्ज़ को जमा क्यों किया एक जगह पे, असल में मैं ये बताना चाहता हूँ। ये ऐसे नहीं कर दिया कि शायरी के लिए दो लफ्ज़ जमा कर दिया, ऐसा नहीं किया। फ़क़ीह हो हकीम, तो फ़क़ीह जो होता है, मैं अभी बहुत सारी तफसील नहीं करूँगा, लेकिन अब फ़क़ीह का तो आपको अच्छी तरह पता चल गया ना। फ़क़ीह जो होता है वो कुरान और सुन्नत में मौजूद डिवाइन डायरेक्टिव्स की बुनियाद पर नए अहकामात की कानून साजी करता है। ठीक है, हकीम जो होता है उन अहकाम के पीछे पाए जाने वाली हिकमत बताता है। यानी आप यूँ कह लें कि अगर इल्लत का लफ्ज़ सुना है आपने, एक हुक्म होता है ना, एक उसकी इल्लत होती है, वजह जिसको कहते हैं, तो वो आप यूँ कह लें कि इल्लत को बयान करने वाले को हकीम कहते हैं। तो ये इन्होंने देखें कितना खूबसूरत इस तरकीब को लेके, अल्लामा इकबाल को आप ऐਵੇਂ ही ना ले जाएं कि बस शेर पढ़ लिया और शेर पढ़े, ऐसे ना करें। अच्छा, वो तशख़ीस ही होगी ना मर्ज़ की। मतलब आप जो मर्जी करें हाँ वो सही है। अब आप बेशक फकी भी दें उसको वो आपका वजह क्या होनी, फकी देने की वजह। तो इल्म फ़क़ीह हो हकीम, देखें क्या खूबसूरत तरकीब है। ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी तो है। नो डाउट, नो डाउट, अल्लाह ताला का बिल्कुल, कुरान का भी सिफाती नाम, कुरान हकीम हम कहते हैं। तो जी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे किस माना में इस्तेमाल हुआ, इस पर आपको वाज़ेह हुई बात कि एक तो उसकी निस्बत की इल्म के साथ, ये देखें, छोड़ इस बात को अब गहराई के साथ देखें, इल्म के साथ इन दोनों चीज़ों की निस्बत। ठीक है, फ़क़ीह हो हकीम, ये बिल्कुल मामूली लफ्ज़ नहीं है। यानी जैसे हमने तो अच्छा खासा टाइम इन पर लगाया है, ये इससे भी गहरे लफ्ज़ हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ज़रा देखें कि फ़क़ीह को क्यों कहा, हकीम को क्यों कहा, और इनके पीछे क्या हिकमत थी। इसके पीछे भी एक हिकमत थी कि इन दोनों को जमा किया और उनकी निस्बत कहाँ की, इल्म के साथ। तो इल्म फ़क़ीह हो हकीम। अब आगे चलें, असल उनका मौजू क्या है, फ़क्र। वो चाहते हैं फ़क्र को हाईलाइट करना, असल बात ये है, वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, और पॉजिटिवली पहुँचाना चाहते हैं। फ़क्र मसीह हो कलीम, मसीह हो कलीम। अब देखें ज़रा कि उन्होंने उस एक तरकीब की शान ऐसी बुलंद कर दी है कि आपको असल में वो कहाँ निस्बत कहाँ दे रहे हैं, इसको फ़क्र के साथ, उसको इल्म के साथ। लेकिन जो तरकीब इस्तेमाल की हैं उनका हुस्न नहीं बता सकता है कोई, इसको यही मुहाकात है। या आप यूँ कह लें कि जो उनके अंदर फीलिंग्स थी वो उन्होंने आपके अंदर उसकी असर पजीरी कर दी।
तो इल्म, अब ज़रा पढ़े मिसरा, इल्म फ़कीह हो हकीम, फ़क्र मसीह हो कलीम। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी डिटेल बता दूं, टाइम है ना हमारे पास? आज तो हमने बहुत लेट शुरू किया था, थोड़ा सा चलो एक हल्का सा टच देता हूँ जिसको आप समझें। मसीह कलीम को क्यों जमा किया? क्योंकि वो दोनों फ़क्र, उनकी ज़िंदगी में फ़क्र था, जैसे हज़रत ईसा के मतलब मशहूर है, उनकी फ़क्र की ज़िंदगी थी, गरीबी ईसा। गरीबी ने इनके मौजूदात मुर्दा को जिंदा करते थे ना ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो एक इंसानों के अंदर जो मुर्दा रूह है। मेरा ख्याल है ईसा और मूसा दोनों की मिसाल इसलिए कि वो इल्म का जो प्रैक्टिकल था, डेमोन्स्ट्रेशन। नहीं, इल्म का तो इसके साथ ताल्लुक, ये तो आप फ़क्र की बात हो रही है। इल्म तो उन्होंने यहाँ फ़कीह व हकीम पे ख़त्म कर दिया ना, अब यहाँ फ़क्र मसीह व कलीम, दो रिलीजन्स का जिक्र है। हाँ दो, एक तो वो दो ब्रांचेस, बड़ी बात तो यही है सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। जी, एग्जैक्टली, ईसाइयत और बिल्कुल। और अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते थे, डायरेक्ट लेके आते ये थे है, अल्लाह ताला। ये है एक खूबसूरत बात इन्होंने की, एक ये कि मसीह अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ मसीह कहा, ये मसा से यानी टच करने से, मस करने से, और वो शिफा देते थे, तो ये इसकी निस्बत असल में की फ़क्र के साथ, इस बात की निस्बत। और उधर कलीमुल्लाह जिसे हम कहते हैं ना, कि अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त कलाम करना, तो ये दो चीज़ों को जमा किया, मसीह हो कलीम, और इनकी निस्बत किससे की? फ़क्र के साथ। ये यानी आप देखें कि ये दोनों चीज़ें, एक फ़कीह हो हकीम और मसीह हो कलीम, ये ऐसा नहीं है कि महज वज़न पूरा करने के लिए या महज शायरी करने के लिए ये अल्फाज, इनके पीछे ये हिकमत है। अब देखें, अब इल्म की बात की और फ़क्र की बात की, अब उसका तकाबुल अगले मिसरे में कर रहे हैं। इल्म है जुयाए राह, फ़क्र है दानाए राह। इल्म जो है वो रास्ते की तलाश करता है, जो और इन- फ़क्र जो है वो गाइड करता है रास्ते। जोइंदन फ़ारसी का मस्तर है, जू का मतलब होता है तलाश करने वाला, जू। एक उर्दू में हम कहते हैं ना जुस्तजू, जुस्तोजू, असल ये लफ्ज़ है। जुएशीर, हाँ, जू कहते हैं तलाश करने को, जू आए राह, राह की तलाश करने वाला। राह की तलाश कौन करता है? इल्म, वो रूह राह की तलाश करने वाला है। ठीक है, फ़क्र गाइड करता है रास्ते जैसे का। फ़क्र गाइड इल्म कर रहा है। आप यूँ कह रहे हैं ना, आप इसको दानाए राह के वो उस मंजिल को जानता है, उसको वो जानती है, तलाश में है, वो जानता है। आप कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि गुजर जा, ये बड़ा प्यारा खूबसूरत है। तलाश क्या है वो? दोबारा पढ़िए। से आगे की नूर, चरागे राह है, मंजिल नहीं। तो ये जब कहते हैं ना चरागे राह है, तो आप कह लीजिए कि इल्म असल में क्या है? चरागे राह, मंजिल नहीं है। तो मंजिल क्या, कौन जानता है? फ़क्र। तो ये तकाबुल इस लिहाज से है, इल्म है जुयाए राह, फ़क्र है दानाए राह। ये वाज़े हो गया शेर? वो ज़्यादा वाज़े हो गया। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। फ़क्र मकाम नज़र, इल्म मकाम खबर, फ़क्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। तो मकाम नज़र और मकाम खबर, ये वाज़े, इसका कोई चाहिए इसकी वजाहत? कोई बताएगा जी? नज़र और ख़बर यानी कि टैंजिबल चीज़ों पे बेस्ड है, और ये जो आप कहते हैं कि आप दिल से देखते हैं एक चीज़ को, शायद नज़र और ख़बर में क्या फ़र्क है? खबर इतला देता है ना, खबर तो आप सुनते हैं ना, कोई गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती इंटरप्रिटेशन पे है। डिपेंड करता है। नजर जो देखते हैं वो बिल्कुल वाक़या हो चुका है, वो खबर है। उसका मुशाहदे से ताल्लुक है फ़क्र का, नजर मुख्तलिफ दिल जावी से हो सकते यकीन हैं, करना। और इल्म का मुख्तलिफ ताल्लुक जावी, आप नॉलेज किस से तरह है। से चीज़ों को देख सकते हैं। यस, और जो इल्म है, जो खबर है, वो बताती है कि वो चीज़ कैसी है। बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत अच्छा है, सही है। ये आप समझ लें, एक नज़री उलूम होते हैं, एक ख़बरी उलूम होते हैं। तो नज़री उलूम होते हैं जब आप, जैसे साइंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप मफरूज़ा कायम करते हैं, फिर उसको थेरी बनाते हैं, नज़रिया, ठीक है ना, नज़रिया जिसको आप कहते हैं ना, नज़रिया क्या है, जैसे बहुत सारे नज़रिए हैं, ठीक है ना, नज़रिया इर्तिका है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल।
تو یہ نظریہ جو جہاں نظریے ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں نظری علوم. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی بات کی. اور خبر کیا ہے؟ ہاں خبر ہے, ہاں یہ کسی تو ہے ہی, اصل یہ کسی تو ہے سارا. یہی تو میں سننا چاہ رہا ہوں. ڈسکوری ہے, ایکسپلوریشن ہے. وہ خبر نہیں ہے. خبر سے مراد ہے پیغمبری, کیونکہ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. تو نظری اور خبری جب بھی یہ اصطلاحیں علامہ صاحب کے کلام میں آئیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ. نظر اور خبر یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں, یہ محض ایسے نہیں ہے خبر اور نظر, ایسا نہیں. تو نظر کیا ہے؟ یعنی نظری علوم. نظری علوم کیا مطلب؟ جیسے سائنس ہے, فلسفہ, جب آپ نظریہ قائم کرتے ہیں نا, نظریہ, تو یہ نظری علوم ہے. تو آپ دیکھیں جو ہی آپ نے کہا نظریہ ارتقاء, مثال کے طور پہ نظریہ ارتقاء, تو بڑی طاقت ہوگی اس میں, ڈارون میں بڑی طاقت ہوگی. تو لیکن اپنی ساری طاقت کے باوجود کیا ہے؟ نظریہ, تھیوریٹیکل, ایک تھیوری ہے, ایک تھیوری ہے. بڑی طاقت ہونے کے باوجود کیا ہوگا؟ آپ بہت اوکے, تو ایک بڑی طاقتور چیز ہونے کے باوجود کیا ہوگا؟ نظریہ ہے, ایک نظریہ ہے, نظری علوم ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں خبری, ٹھیک ہے. یعنی آپ جانتے ہیں نا یہ ٹرم آپ نے سنی ہوگی, ایوولوشن ورسز کریشنزم. ایوولوشنزم اور کریشنزم ہے نا, سنا ہے نا یہ. اس کو ایوولوشنزم کیا ہے؟ یہی نظریہ ارتقاء. اور کریشنزم کیا ہے؟ یہ خبر ہے. سو خبر کو آپ اس کا مطلب چیلنج نہیں کر سکتے؟ جو نہیں, چیلنج تو آپ ہر ایک کو کرتے, چیلنج تو آپ اللہ کو کر رہے ہیں. نہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے تو وہی کا ذکر ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایگزیکٹ خبر. لیکن یہ صرف وہی نہیں ہے, لیکن سمجھیں یہ صرف ہاں پہلے وہ فقر اور علم پھر نہیں 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 فقر کو سپیریئر بتایا جائے. لیکن سنیں, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا طلب. آپ بتائیں پہلے. زبور اعظم کی دعا ہے, یا رب درون سینے دل باخبر بدے. باخبر جو ہے وہاں سے تو ایک ایسا دل چاہیے, اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہیں جو باخبر. اب اصل میں آپ یہ دیکھیے, یہ بڑی اچھی طرف انہوں نے توجہ دلائی. خبر, یہ بات صحیح ہے, وہ خبر اسی معنی میں آئے گا, نہیں اس کے معنی میں. لیکن یہاں پہ خبر جو ہے یہ محض پیغمبری نہیں ہے, یعنی صرف یہ خبر نہیں ہوتی. ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا اخبار احاد, حدیث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, روایات کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھیں وہاں درجہ فوراً نیچے آ گیا. جیسے کچھ لوگ اخباری کہلاتے تھے کسی زمانے میں مسلمان, ایگزیکٹلی, تو وہ خبر سے اخباری یعنی روایات سے ملنے والے علم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خبر. روایات سے ملنے والے علم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خبر. تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. علم کے ساتھ اس نسبت کیوں کی؟ کیونکہ یہ کیا ہے. لیکن نظر کیا ہے؟ یہ نظریہ جب قائم ہوتا ہے, مفروضہ جب قائم ہوتا ہے, تو یہ آپ کی انر سیلف سے ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی یہ بعد میں صحیح ہو یا غلط ہو, یہ بات کی بات ہے, یہ بات کی بات ہے. لیکن اس کو اس طرح انہوں نے یعنی تقابل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی خبر جو ہے یہ پیغمبری بھی ہے, یعنی وہی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. لیکن حدیث کیا ہے؟ وہ بھی خبر ہے. حدیث کیا ہے؟ وہ بھی خبر ہے. ان دونوں سے حاصل ہونے والی چیز کیا ہے؟ علم. ایک علم وحی ہے اور دوسرا علم روایت ہے. یہ سمجھ گئے نا آپ بات. تو یہاں پہ اصل میں مقام خبر کو علم کے ساتھ کیا ہے کہ تو صرف اتنا بات کہنا مقصود ہے کہ یہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے. اور اس کو یقینی طور پہ جیسے آپ نے توجہ دلائی, اس کو اصل میں وہ فقر سے نیچے رکھنا چاہتے ہیں, فقر سے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ خبر جو ہوتی ہے, کیا وجہ نیچے رکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا ذرا, ایک لفظ بتائیں. اخبار احاد کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو ہے اگر روایات سے ملنے والے علم. اخبار احاد ایک آدمی سے اگر خبر جو جی ہے وہ زیادہ لوگوں کے بجائے ایک آدمی سے ہی ایسا, تو اس کی اتھینٹسٹی کا ہاں. تو لیکن یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, علامہ صاحب نے مقام نظر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب باقی اگر اقبال کی پوئٹری دیکھیں تو یہ مشاہدے اور جس طرح عین الیقین ایک چیز کا معاملہ صحیح ہوتا ہے, وہ اس سے تو یہ علم سے ذرا اوپر کی چیز, فیضان نظر تھا یا کہ ایگزیکٹلی, تو وہ بالکل یہ نظر, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں تعارف بھی کرا دوں, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بھی اقبالیات کے اسکالر ہیں, اور انہوں نے بڑی عنایت کی کہ تشریف لائیں آج. تھینک یو سو مچ. آج آپ سے
नहीं ऐसा एग्जैक्ट मिस किया उसकी वजह से हम लेट हो गए, वरना कोई मसला नहीं है जी, इंशाल्लाह ये अब आते रहेंगे, ये हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं और इंशाल्लाह इनसे हम इस्तिफ़ादा ज़रूर करते रहेंगे। हमारा यही होता है कि हम गुफ्तगू से और एक दूसरे से हम सीखते हैं। इसी गुफ्तगू से देखें बहुत सारी चीज़ें, मैं ख़ुद सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इस डिस्कशन से या इसी कन्वर्सेशन से। तवज्जो होती है और बंदा फिर सीखता है। और इंशाल्लाह ये हम इसकी थोड़ा सा चेंज भी करेंगे कि डिस्कशंस को और ऊपर के लेवल पे लेके जाएं। जब आप दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे शेर का, फिर उसको उसके साथ समझेंगे। तो ये नज़र का, जैसे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अच्छी तवज्जो दिलाई, नज़र असल में ये नज़र वो नज़रिया वाली नज़र नहीं है, वो भी मतलब होता है नज़री इल्म, या एग्जैक्टली ये मैं इससे रुजू करता हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ पे रुक के ये बताऊँ कि नज़री उलूम और ख़बरी उलूम ये मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, इस इस्तिलाह के साथ भी मौजूद हैं, अल्लामा के कलाम में भी मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि नज़री उलूम जो होते हैं यानी वही नज़रिए पे कायम होने वाले, ठीक है, और ख़बरी जो ख़बर के ज़रिए मिले। लेकिन यहाँ पे आप चूँकि हमें देख रहे हैं फ़क्र और इल्म का तकाबुल हो रहा है, ठीक है ना, तो ये इसको कहते हैं यानी इसको कहते हैं टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, कि मतन के अंदर पाया जाने वाला सियाक़ो सबाक वहाँ से किस तरह लफ्ज़, इसको ज़रा ध्यान से सुने इस बात को। नज़री उलूम ये वही हैं जो मैंने अर्ज़ किया, जो नज़रिए की बुनियाद में, जैसे डार्विनिज़म का मैंने हवाला दिया, और उसके मुकाबले में ख़बरी उलूम वही हैं जो मैंने अर्ज़ किया, यानी ख़बर मिल रही है, वही के ज़रिए भी मिलती है और अखबार हाथ के ज़रिए भी मिलती है, रवायात के ज़रिए भी, उसको ख़बर कहते हैं। और आप देखेंगे अल्लामा के कलाम में हम ये आएंगे, बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें, आप ज़रा टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट को ज़रा ज़हन में रखें कि किस तरह टेक्स्ट वही अल्फाज जो अपने माने रखता होता है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे माना तब्दील हो जाता है। यहाँ पे असल में हम देख रहे हैं कि फ़क्र और इल्म का तकाबुल कर रहे हैं और फ़क्र को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना, ऊपर से हम ये देख रहे हैं, और इल्म को नीचे रखना। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस ख़बर का माना क्या लेंगे हम जी, नहीं, इसका माना लेंगे ख़बर वाहिद यानी रवायात, अखबार अहाद, जबकि वही भी ख़बर है, लेकिन यहाँ पे वो माना नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए एग्जैक्टली इसलिए कि यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट ये तकाजा कर रहा है। ये बात समझ आ गई आपको? इसमें कोई वो मुगालता हो तो प्लीज़ ज़रा पूछिएगा। जी प्लीज़। क्या ये जो मुकामे नज़र है, हाँ। इसमें कहीं कुरान की साइड की तरफ कोई इशारा नहीं है कि जो अल्लाह ने फरमाया नबी के वसल्लम की जो निगाह है वो एक हद से ज़्यादा ना बढ़ी ना कम हुई, और फिर अगर हम खबर को कुरान समझें तो क्या इस तरह से हम देख सकते हैं? ये देख तो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जब हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं इस कलाम का, तो वो तकाजा ये कर रहा है कि उन्होंने फ़क्र को और इल्म को मुकाबला करना है और फ़क्र को हाईलाइट करना है। तो जब ये कॉन्टेक्स्ट आपके पास होता है तो फिर अब आपको देखना है कि नज़र के मिसाल के तौर पे अगर 26 मतलब हैं तो उनमें से कौन सा मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किसको कबूल कर रहा है। इसी तरह ख़बर के मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा ना कि वही क्या है, वो भी ख़बर है, और हदीस क्या है, वो भी ख़बर है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे हम वही का माना नहीं ले सकते। क्यों? इसलिए कि कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि उसको इल्म को वो नीचे रखना चाहते हैं। और अब यही देखेंगे कि यही ख़बर का लफ्ज़ इसी अल्लामा के कलाम में जहाँ वही के मानों में आता है, बल्कि आपने देखा वो फ़लसफ़ा ज़दा वाले में उसको वहाँ मोहकम कहा। तो ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, जो पॉइंट मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक लफ्ज़ के कई माने हो सकते हैं, हमें ये कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट क्या तकाजा कर रहा है कि हमें लाजिमन इस खबर का मतलब अखबार अहाद लेना है, रवायात लेना है, इन अदर वर्ड्स, या ख़बरी उलूम जितने भी हैं वो लेने हैं। तो उससे क्या होगा, उससे फ़क्र जो है वो आप हाईलाइट हो जाएगा। तो फ़क्र मकाम नज़र, अब क्या है मकाम नज़र? वही है, दूसरे अल्फाज में आप एक लफ्ज़ में अगर बताऊँ तो वही तसव्वुफ़ वाली बात है, वही तसव्वुफ़ वाली, जैसे इन्होंने तवज्जो दिलाई, ये फैज़ान नज़र है या के मकतब क्या है, ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने, तो ये फैज़ान नज़र, फैज़ान नज़र ये यही वाली नज़र है, ये वो नज़र नहीं है, यानी ये वाली नज़र है, ये वाली नज़र वो नहीं है जो मैंने पहले अर्ज़ की। हाँ, ये वो नहीं। तो मैं इस पे ज़रा रुक के ख़ास तौर पे इसका एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ, वो क्यों नहीं है,
क्या वो वजूद ही नहीं रखती वो बात? नहीं, इसलिए नहीं है कि हमने इसका कॉन्टेक्स्ट जब देखा तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं बैठ। ये वाज़ेह बात। आगे बढ़ें। दूसरा फ़क्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। इसका ज़रा बताएं ज़रा, इसको ज़रा आप ऊपर के साथ जोड़ें कि मकाम नज़र जो है वो एक हालत मस्ती में बढ़ती है, या मकाम नज़र पे आपकी मस्ती भी बढ़ सकती है। उस अगर आप मुशाहिदा कोई कर रहे हैं जिसमें आप जो आपकी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ हो सकती है ना, तो इसमें वो सवाब कह रहे हैं उसको, यानी इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, ठीक है ना। और उधर मस्ती क्या होगी कि आपने अल्लाह हाफ़िज़, ओके, उधर क्या है मस्ती भला, कुछ बताएंगे ज़रा जी। मुझे लगता है जैसे आपने कहा तसव्वुफ के बाद इंसान जब अपनी बेखुदी में होता है, जी 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 जी, कनेक्शन जुड़ जाए तो फिर वो दुनिया से लाताल्लुक हो गया, राइट, उस वक्त वो जिस कैफियत में भी है वो सारी कैफियत अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। बिल्कुल। और जब आप इल्म के साथ वो काम करेंगे तो फिर आपकी पकड़। एग्जैक्टली, तो इल्म के साथ वो काम कैसे भला होगा? अगर ख़बर है, मिसाल के तौर पे ख़बर है, उसको हमारे हाथ के मानों में ले लें थोड़ी देर, तो मस्ती क्या होगी? फिर आप जानबूझ के किसी चीज़ से अपने आप को भूल जाना या नहीं, मस्ती इसमें इल्म की ख़बर में क्या मस्ती होगी? एक लफ्ज़ तलबीस सुना आपने? तलबीस जैसे आप जैसे मंसूर हाज में कहा था अनल हक, वो वाली, वो तो वो हाँ, वो फ़क्र की मस्ती थी। लेकिन अगर हम इसको इल्म की मस्ती में जाएंगे तो ये फिर गुनाह है। हाँ, इल्म की मस्ती क्या होगी भला? यानी इल्म की मस्ती ये है कि अगर इल्म ख़बर है, ये इल्म का गुरूर भी आपको ले जा सकता है। गुरूर भी कैसे? इल्म अगर ख़बर है, जैसा कि ये कह रहे हैं इल्म मकाम ख़बर, इल्म अगर ख़बर है तो ख़बर में अगर 2 नंबरी की तो ये मस्ती है। आपको मैसेज मिली है फिर भी आप उससे एक्सीड कर रहे हैं। ख़बर में अगर मस्ती की आपने, ये मस्ती है, तो ये इसलिए गुनाह कहा। आप यूँ कह लें कि एक रवायत आप पेश कर रहे हैं, रवायत रसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब, लेकिन उसमें तलबीस हो गई, यानी कुछ अल्फाज अपने पास से दाखिल कर दिए, तो ये क्या है? ये मस्ती हो गई। और ये मस्ती अगर होगी तो क्या है? गुनाह है। अब आप समझ गए ना? या आप रवायत के किसी लफ्ज़ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ख़बर तो मिली, इल्म भी मिला, लेकिन आपने उसमें क्या कर दी? मस्ती कर दी। मतलब वो कुरान में वो करते थे ना, ला तक़रबू सलाता इल्ला कुसाला पे हाथ रख देते थे। हाँ, अल्लाह अंतुम सुकारा। समझ गए आप? ये बात वाज़ेह हो गई। तो इसमें अगर कोई वजाहत तलब, अगर भी अभी भी कोई बात है, वरना आगे बढ़े। फ़क्र में मस्ती सवाब वो क्या चीज़ है? यही ना कि मतलब जो असल में तो मकाम नज़र के हवाले से आपको देखना पड़ेगा कि आपको हक़ का मुशाहिदा करना है। मकाम नज़र ये है कि हक़ का मुशाहिदा हक़, ये वहाँ पे कोर ऑब्जेक्टिव है। तो इस मकाम में अगर मस्ती है तो मस्ती होगी तो आप इस जो एक लफ्ज़ सुना होगा ना आपने, सैर बातिन, वो सैर बातिन करेंगे और उसमें आप खोते जाएंगे और फिर आप बुलंदियाँ करते जाएंगे, तो वो है मस्ती असल में। तो ये उसको उन्होंने सवाब का लफ्ज़ और गुनाह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के मानों में ले रहे। वाज़ेह हो गई जी बात? आगे कहते हैं जी कि ज़्यादा तो नहीं हो गई, तो चलो ये थोड़े से और पढ़ लेते हैं। मेरा ख्याल आज हमारे 20 मिनट लेट क्लास शुरू हुई थी। इजाज़त है जी आपकी? अच्छा, और आपकी जी ना? इनकी जी, ये हमारे चीफ़ हैं जी, तो ये इनका तारुफ है ना आपको, नुमान इनका नाम है, नुमान हमीद। ये लंदन से तशरीफ़ लाते हैं और ये माशाल्लाह आप कह लें जी, नहीं ऑर्गेनाइज़र भी हैं इस कमेटी के माशाल्लाह, और ये ही इज़ अ यंग स्कॉलर। ये मैं आगे आप कहना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी ख़ासियतें और सलाहियतें अता की हैं। बोलते कम है ज़रा, ये है कि हाँ, आप मौका देंगे तो ये बात सही है। मैंने इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कोई इस तरह का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ कि इस गुफ्तगू को ये हमने ऐसा लगता है कि जैसे एक लेक्चर और वो बन गया है, थोड़ी सी इसको कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन तो खैर होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो कि आपकी पार्टिसिपेशन बढ़े। ये नहीं, आप बहुत बेहतरीन तरह से समझाते हैं, मतलब जोक्स असाइड
जो एक तरीका है बहुत खूबसूरत है नहीं माशाल्लाह। जज़ाक I'm sure हर किसी का अपना अपना होगा करने इतना का। इल्म तो नहीं है, है इतना इल्म तो हमें नहीं है। नहीं, इल्म के तो मेरे पास भी नहीं है। मतलब ये है कि डिस्कशंस जितनी होंगी, जितनी रिच कन्वर्सेशंस होंगी, उतना ज़्यादा हम इंशाल्लाह सीखेंगे। हमारे इल्म का तो आपको अंदाजा हो गया ना, नहीं पिछले लेक्चर की बातें भूल जाते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल आपका इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपका इनपुट जितना ज़्यादा होगा उतना ये बेहतर होगा। ये 2-3 घंटे का होना चाहिए। अच्छा, मैं तो समझ घंटे बाद ही बंदे थोड़ा सा थकावट। अच्छा जी, 2-4 शेर के अलावा आगे बढ़ते हैं। इल्म का मौजूद और फ़क्र का मौजूद और अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा। बताएं जी, इस शेर को पढ़ना। इल्म का मौजूद क्या होता है और फ़क्र का मौजूद क्या होता मौजूद वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल जी। किया गया ना। है? इल्म का मौजूद और फ़क्र का मौजूद और बताएं नोमान। लेकिन दोनों अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा। दोनों एक ही। दोनों एक हैं, लेकिन मौजूद ये वो क्या है का मौजूद और आप मौजूद की जरा एक्सप्लेनेशन दें हमें। इल्म तो 5 सेंसेस के Final ऊपर ही रहेगा, product उसकी वही है। खुदा के इर्द मायने में गिर्द फाइनल रहेगा। प्रोडक्ट अशहदु अल्ला इलाहा हाँ, मौजूद मौजूद का इल्म माना जितना भी बताएं। फलसफा है, जो फलसफियों ने काम किया है इस चीज़ को जानने के लिए कि कायनात कैसे वजूद में आई, आदमी कैसे वजूद में आया, जी। तो इसकी जो सारी की सारी बहस है वो लम्हा ने उसको समेटा कि वो कुछ और बताता है और फ़क्र का मौजूद जो है वो कुछ और बताता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों इसी पॉइंट पे आते हैं Exactly. कि कोई ना कोई है और उसके ऊपर फिर वो बता रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा कि बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी तरह आपने समराइज़ कर दिया इनफैक्ट। Can you repeat because I couldn't hear? अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि कायनात कैसे वजूद में आई, इसके दो नुक्ता नज़र हैं। एक को इन्होंने इल्म के साथ निस्बत दी और दूसरे को फ़क्र के साथ। ठीक है ना? तो इल्म और फ़क्र, अब वही बात है कि हमें ये देखना है कि फ़क्र को चूँकि वो ऊपर रख रहे हैं तो किसको हमने फ़क्र कहना है, किसको इल्म कहना है, ये कॉन्टेक्चुअल चीज़ होगी। लेकिन आप वो दो चीज़ें क्या हैं इसको समझ लें। एक ये कि इस कायनात का एक रब है, कायनात का एक खालिक है, ये एक है, और ये कायनात एक खालिक है। यानी कायनात खुद ही अपनी खालिक है। ये कायनात आपसे आप चल रही है और खुद ही बस ये कहीं से तख्लीक में होगी, कहीं से वजूद में आ गई। एक ये है। इल्म कहता है। नहीं अभी छोड़े इल्म क्या कहता है, फ़क्र वो बाद में फैसला करेंगे, वरना बाद में फंस जाते हैं हम। अभी फ़िलहाल ये फैसला बाद में करेंगे, पहले समझ लें है क्या दो चीज़ें। ठीक है, एक ये कि कायनात का एक खालिक है, ठीक है, और उसने क्या किया है, उसने एक कुन, कलमा कुन के साथ इस कायनात को तख्लीक कर दिया है, इसको वजूद बख्श दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या नुक्ता नज़र है कि भाई ये कायनात अज खुद है, अज खुद है ये कायनात। बिग बैंग इज़ वन ऑफ दी कि ये मदर नेचर है, खुद ही चल रही है हर चीज। खुद ही चल रही है, ये एक चीज़ है, और खुद ही अपनी खालिक है। यानी आप यूँ कह लें कि कायनात ही को खुदा मानना, इन अदर वर्ड्स कायनात को ही खुदा मान लेना। तो ये इल्म, अब आ जाए उधर, इल्म को किसका करना है, फ़क्र को। तो इल्म का मौजूद इन्होंने इसको कहा है, क्या है कि आप यानी अब इल्म किस माने में आएगा, फ़लसफ़े के माने में। इन अदर वर्ड्स यानी 2,500, 3,000, 4,000 साल का जो फ़लसफ़ा है वो गौर व फिक्र कर रहा है कि ये कायनात क्या है, ये कहाँ से वजूद में आई है, ये हेवला क्या है, ये मादा क्या है। ठीक है ना, ये समझ गया आप ना। यानी रस्तू की ज़बान में ये एक्सीडेंट क्या है, ये सब्सटेंशियल क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये क्या हैं, इसको उन्होंने इल्म कहा है। और फिर उसकी इंतहा क्या है, साइंस, यानी फ़लसफ़ा और उसकी इंतहा साइंस। तो ये आज तक वही जिस पे मटीरियलिज़म फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको आप कहते हैं मादियत पसंदी, तो ये सारा क्या है कि कायनात है, कायनात का कोई खालिक नहीं है, या कायनात के खारिज में कोई खालिक नहीं है, ये कायनात ही अपनी खालिक है। इन अदर वर्ड्स तो ये एक मौजूद की एक किस्म ये है। और दूसरी क्या है कि नहीं, ये कायनात है, इस कायनात का एक खालिक है। ठीक है, और ये असल में नीचे जो अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा 2 दफ़ा आया है,
इस पे कोई तबसरा करेगा? इस पे मैं अपना ख्याल बाद जी। हाँ, इसमें देखें एक हमने पढ़ा था लफ़ो नशर मुरत्तब, लफ़ो नशर गैर मुरत्तब। पता नहीं आप में से कितनों को याद, हाथ खड़ा करें किस किस को याद है? लफ्ज़ याद है, मतलब नहीं याद। चले 3-4 लोग हैं, एटलीस्ट 3-4 गवाह हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमने बात तो की थी यहाँ। बिल्कुल की थी, आपने बहुत अच्छी रहे। हाँ, लफ़ो नशर मुरत्तब और लफ़ो नशर गैर मुरत्तब जो एक तरफ सामने और एक तरफ क्रॉस। जैसे कि देखें 2 मिसरे हैं ना ऊपर, एक मिसरा ऊपर क्या है, उसके 2 हिस्से हैं, ऊपर वाले मिसरे के 2 हिस्से हैं और फिर उसके नीचे जो मिसरा है उसके भी 2 हिस्से हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले मिसरे का पहला हिस्सा नीचे वाले मिसरे के पहले हिस्से के साथ मुताबिकत रखे तो उसको कहते हैं लफ़ो नशर मुरत्तब। और अगर मुताबिकत ना रखे बल्कि इधर वाला हिस्सा दूसरे मिसरे के इसके साथ यानी क्रॉस हो तो उसको कहते हैं लफ़ो नशर। समझ गए आप? गालिब ने कहा था एक सब आग, एक सब आग, एक सब पानी। अब ये ऊपर वाला मिसरा है, एक सब आग, एक सब दीदाओ दिल अजाब हैं दोनों। अब देखिए दीदाओ दिल, दीदा क्या है? दिल क्या है? दिल। अब देखिए ऊपर क्या था? आग और पानी। एक सब आग, आग का ताल्लुक दीदा से है या दिल से? दिल से है। तो लफ़ो नशर क्या हो गया? गैर मुरत्तब। ये समझ आई कि नहीं आई? किसको नहीं आई जरा हाथ खड़ा करे प्लीज। समझ आ गई। आ गई समझ। अच्छा, इसको कहते हैं लफ़ो नशर गैर मुरत्तब। और लफ़ो नशर मुरत्तब होना यानी उसके बिल्कुल नीचे उसका ताल्लुक कायम हो जाना। जैसे कोई मिसाल है किसी के पास? इश्क, ये वो है ना, ये अगलो दिल नहीं शोला, ये खासो कुछ ऐसे करके है अलामा का, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ। वो है ना इश्क खुदा का कलाम, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। ये याद है आपको? इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। इसका पहला मिसरा क्या है? ये अकलो दिल है जिब्राइल इश्क। हाँ, एक ये अकलो दिल हैं शरर शोलाए मोहब्बत के। अच्छा, ये दूसरा मिसरा फिर मिस हो गया। कोई मसला नहीं। ये अकलो दिल हैं शरर शोलाए मोहब्बत के, ये खासो खर्च के लिए है, वो नीस्तान के लिए, कुछ ऐसी टर्म है। नेस्तान ये जो है इसके लिए सही। तो वहाँ पे भी यही इसी तरह लफ़ो नशर मुरत्तब गैर मुरत्तब। ये मैंने जो शेर अभी है ना, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा। अब देखिए ज़रा, इश्क दमे, इश्क ज़रा ज़हन में लाइए, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का कलाम, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। तो ये लफ़ो नशर मुरत्तब के गैर मुरत्तब। जल्दी बताइए कैसे? ऊपर क्या है? इश्क दमे, दूसरी चीज़ क्या है? इश्क दिले मुस्तफ़ा। नीचे क्या है? इश्क खुदा का रसूल। मुरत्तब हो गया, मुरत्तब। ये क्रॉस हो रहा है। शेर दोबारा सुन लें और मुझे एक फ़ैसला करके बताएं मुरत्तब है कि गैर मुरत्तब। शेर दोबारा सुने। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि लफ़ो नशर मुरत्तब है कि गैर मुरत्तब? लफ़ो नशर मुरत्तब है या लफ़ो नशर गैर मुरत्तब है? एक बंदा है पूरी क्लास में जो कह रहा है मुरत्तब है। लास्ट दफा आपने यही कहा था कि मुरत्तब है। इनके लिए तालियां। मैंने पहले कहा था गैर मुरत्तब है, फिर आपने साबित किया था कि मुरत्तब है। इन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे कि लास्ट दफ़ा आपने मुझे गलत कहा था, अभी भी इस्तदलाल नहीं है उनके पास। अब बताएं सर। ये जो इसमें है ना, इश्क दमे जिब्राइल, नहीं सॉरी, हाँ, इश्क दमे जिब्राइल और दूसरा क्या है? इश्क दिले मुस्तफ़ा।
और नीचे क्या है, इश्क खुदा का रसूल। असल में यहाँ से गलती पैदा होती है। खुदा का रसूल जब हम कहते हैं तो वो 100% हम कहते हैं मुस्तफ़ा हैं। तो दमे जिब्राइल के साथ किस तरह मैं बताता हूँ। तो ये इसी से गलती पैदा होती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, असल में जिब्राइल हैं रसूल। इस शेर में जिब्राइल क्या हैं, रसूल। दमे जिब्राइल जमे को क्यों लेके आ रहे हैं पैगाम, और उधर कल्बे मुस्तफ़ा वही का महबत है। उधर खुदा का रसूल जो है, समझ गए ना, खुदा का रसूल जिब्राइल हैं और कलाम क्या है, महबत वही, यानी उनके कल्ब पे। तो इसलिए ये थोड़ी टेक्निकल थी ये मिसाल, लेकिन बहरहाल मैंने आपको जो असल बात बतानी थी वो क्या थी, लफ़ो नशर मुरत्तब और लफ़ो नशर गैर मुरत्तब। इस बार यहाँ पे इस शेर में लफ़ो नशर मुरत्तब और लफ़ो नशर गैर मुरत्तब की बात ही नहीं है। मैं ये असल में बताना कितनी तमहीद मैंने बांधी, सही कह रही नहीं, इसमें वो बात ही नहीं है। लगता यही है, जैसे अभी हमने यहाँ कहा ना कि प्रोडक्ट दोनों का एक है, नहीं, प्रोडक्ट दोनों का एक नहीं है, लगता यही है। इसलिए मैंने इतनी लंबी बात आपको, ताकि अच्छी तरह आपको ये समझ आ जाए, यहाँ पे लफ़ो नशर मुरत्तब या गैर मुरत्तब का किस्सा क्या है यहाँ, फिर 2 दफ़ा क्यों कहा, क्या ज़रूरत थी कहने की। इसलिए कि अभी आप देखें कायनात का वजूद, जब है ना, कायनात का एक खालिक है खारिज में, कायनात का खारिज में एक खालिक है जिसने कलम कुन से इसको तख्लीक किया है, ठीक है, और उसके सिवा कोई खालिक नहीं हो सकता। यह है एक बात, ठीक है। और दूसरी बात यह कि एक कायनात ही खालिक है, तो उसकी नफ़ी जो है, दूसरी बात की नफ़ी करने के लिए एक तो उसको निस्बत दी इल्म के साथ कि इल्म गलत भी हो सकता है, फ़क्र गलत नहीं हो सकता, कहना ये चाहते हैं। और अशहदु अल्ला इलाहा 2 दफ़ा क्या है कि ये असल में कहना चाह रहे हैं कि बस वो उसके सिवा कोई नहीं है, वही है इसका खालिक। तो ये असल में 2 दफ़ा क्यों आया, एम्फसाइज के लिए, इसको एम्फसिस करना चाह रहे हैं, वो इसको ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं कि इल्म का मौजूद, और स्ट्रेस देना चाह रहे हैं इल्म का मौजूद और फ़क्र का मौजूद। और जब ये कहा ना कि फ़क्र का मौजूद हो, तो आप यूँ कह लें कि वो जज्बात में आ गए। यहाँ कह के वो एक तरह से जज्बात में आ गए हैं, और फिर आगे क्या कहा, अशहदु अल्ला इलाहा, यानी उस एक खालिक, तो नहीं कहा इल्लल्लाह, तो इसमें यानी इसको कहते हैं, कुरान मजीद में भी ये होता है, इसको कहते हैं महजूफ ओमिशन जिसको कहते हैं ना। महजूफ वो होता है कि जैसे आपको कलाम की रियायत से एक लफ्ज़ को हज़फ करना पड़ता है, तो यहाँ इसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो मौजूद है उसमें। इल्लल्लाह के सिवा तो अशहदु अल्ला इलाहा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो जैसे आपने वो बताया कि जो बिग बैंग से या जो कायनात ही अपनी खालिक है, तो उस पर तो फिर अल्लाह इलाहा नहीं आता ना उस पर। तो ये दोनों जो हैं ये उस फ़क्र वाली बात पे हैं, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको स्ट्रेस करने के लिए इसको 2 दफ़ा लेके आए हैं, एम्फसाइज कर दिए। बात वाज़े हो गई है जी, इसका लफ़ो नशर से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, काफ़ी है मेरा ख्याल है। जज़ाकल्लाह। कोई अगर सवाल या कोई तबसरा या कोई मशवरा, तो ये ख़त्म नहीं करने आपने, 2 शेर रह गए, मज़ा आ रहा है, 2 शेर रह गए बस, जल्दी में करने पड़ेंगे, कर लेते हैं। पढ़े फिर। चढ़ती है जब फ़क्र की शान पे तेग़े खुदी, ये तफसील तलब है लेकिन जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा सा। चढ़ती है जब फ़क्र की शान पे तेग़े खुदी। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, एक ये कि शान को समझें और तेग़ को समझें। तेग़ को धार देने वाला उसको शान कहते हैं, ठीक है। अब शान की निस्बत की फ़क्र के साथ और तेग़ की निस्बत की खुदी के साथ, तो असल में यहाँ पे ना तेग़ है ना शान है, असल में क्या है, खुदी है और फ़क्र है। समझ गए आप? तो फ़क्र को तेज कर रहे हैं वो, नहीं खुदी को तेज कर रहे हैं, खुदी को तेज फ़क्र की शान से कर। एग्जैक्टली, क्या खूबसूरत है ना। चढ़ती है जब फ़क्र की शान पे तेग़े खुदी, तो फिर क्या करती है, एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। कि एक सिपाही की ज़र्ब जो है, कार कहते हैं काम को, वो काम करती है पूरी फौज का। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको अपनी खुदी को पॉलिश करना है,
अपनी खुदी को एक तरह से तज़किया करना है, लेकिन वो फक्र के थ्रू करना फ़क्र के ज़रिए से। और फ़क्र क्या है? अल्लाह ताला के सिवा किसी को एक्सीलेंट, यस, ये है फ़क्र, ये यस, अशहदु अल्ला इलाहा, ये इसलिए कहा कि वो फ़क्र को डिफ़ाइन कर दिया उन्होंने आखिरी दर्जे में। आखिरी शेर पढ़ते हैं। इन दो शेरों की अगले में ज़रा ज़्यादा तफसील भी करेंगे, लेकिन इसमें दिल अगर इस खाक में ज़िंदा व बेदार हो, तेरी निगाह तोड़ दे आईना महरो माह। ये वैसे इसका इस गज़ल का ये शेर है, इसमें इसको समझें। दिल अगर इस खाक में, किस खाक में? इंसान की खाक, इस दुनिया में जिंदा व बेदार हो, तो फिर क्या होगा? तेरी निगाह तोड़ दे आईनाए मेहर व माह। चांद और सूरज को आईने से तशबीह दी और उसको तोड़ सकती है तुम्हारी निगाह सिर्फ निगाह, अगर फ़क्र। जैसे हुजूर ने चांद को दो टुकड़े किया था अपनी निगाह से। टाइम और स्पेस से आप बियॉन्ड जा सकते हैं। बहरहाल इसमें इस निगाह को कहा है कि आपकी निगाह जो है ये तासीर रखती है अगर आपने अपनी खुदी को तेज़ कर लिया है फ़क्र के ज़रिए से। अपने सादा अल्फाज में कहूँ कि अगर आपने खुदी क्या है? सेल्फ़, अपना तज़किया नफ्स कर लिया है, तो आपकी निगाह में और कल्ब में वो ताकत आ जाती है कि फिर आप ये सूरज और चांद और ये चीज़ें जो हैं आपके सामने खुदी को कर बुलंद इतना प्यार तक दे। ठीक है जी, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।